एक्चुअली आज सेकंड हाफ सेशन के स्पीकर्स ने मेरा काम इतना आसान कर दिया है, मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं ना, जब माल अच्छा हो तो मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती। और फर्स्ट सेशन में मैंने आपसे एक और बात कही थी कि जब आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आपको एक एक हर रेंज का प्रोडक्ट दिखाया जाता है। आपको ये शर्ट पसंद नहीं आ रहा तो थोड़ा, अगर 500 वाला पसंद नहीं है तो 1000 वाला पसंद नहीं आया तो 1500, इस तरह से। मैंने आपसे बात किया कि सेकंड हाफ में रियल हीरोज होंगे, लेकिन अब मैं जिसे बुलाने वाला हूं वो हीरो नहीं है, वो सुपरस्टार है। आइए उनका जल्दी से एक एवी देख लेते हैं। इससे पहले सिर्फ 2 लाइनें उनके बारे में कहूंगा कि जियो तुम बिहार के लाला, जियो तुम 1000 साला। एक एवी। There are times when you are made to bend on the knees and accept your defeat. There are times when you are neglected just because you think different or you have blood in your veins to achieve what you dream. There are times when you are pushed from the cliff, and there are times when you are just about to get up. But the moment you accept your defeat is the moment you lose. A small village of India where resources are hard to find and basic needs are acquired through hardships. A young boy rised above all, breaking the boundaries of all despair and making his way through the path full of thorns, while all others were busy following the footsteps of some great man who believed in making his own path. His belief was to reach a point where education be treated as something immortal, something that can't be weighed with dollars or rupees. His belief was to establish the Ramanujan School of Mathematics at a level where students are not just taught but are made to believe in their dreams, to establish their dreams as reality. Anand Kumar, a simple man who was born in 1 January 1973 in Patna, Bihar. His father was a post office clerk who died when he was just 19. He used to sell papads and tutor children for some earnings. He couldn't go to Cambridge University where he was offered education because of his unstable financial conditions, but was very passionate about mathematics and started the Ramanujan School of Mathematics. पिताजी हमारे हमेशा कहते थे, बेटा कुछ भी काम करो अच्छा करो, कोई काम बुरा नहीं है, जो काम करो उसमें सबसे आगे रहो, बढ़िया करो। काफी दिक्कतें आई, पैसे की किल्लत तो आई, मकान मालिक का दिक्कत, बदमाशों का दिक्कत, कोचिंग माफियाओं की दिक्कत सामने आई। Anand Kumar is in the Limca Book of Records 2009 for his contribution in helping poor students to crack IIT-JEE by providing them free education under the banner of Super 30. Time magazine has selected mathematician Anand Kumar's school Super 30 in the list of Best School of Asia 2010. He was also awarded the S. Ramanujan Award for 2010 by Institute for Research and Documentation in Social Sciences in July 2010. He was also selected by Europe's magazine Focus as one of the global personalities who have the ability to shape exceptionally talented people. दोस्तों,
कहते हैं लीक छोड़ तीनों चलें, सिंह सपूत सवार। आनंद वो शेर हैं, वो मिट्टी के लाल हैं जिन्होंने लीक छोड़ के अपना राह बनाई। वो इतने सिंपल हैं, इतने सीधे हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने मिट्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक जो उनकी जिद है, जो डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, उसके लिए मैं 4 लाइनों के साथ उनका तारुफ आपसे करवा रहा हूं कि मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता हूं, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता हूं, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता हूं, गौण भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, कितने भी पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पे, मैं लोगों से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पे। इस जज्बे के साथ आनंद कुमार 1-to-1 कम्युनिकेशन में बिलीव करने वाले, मिट्टी से जुड़े हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित जोरदार स्पीकर शेर दिल जवान दिलावर जी, हमारे सभी कार्यकर्ता और ऑर्गेनाइजर जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, और हमारे देश के आन बान शान और भारत का भविष्य यहाँ युवा वर्ग, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे पहली बार सूरत में बोलने का मौका दिया। लेकिन मौका तो दिया, लेकिन साथ साथ थोड़ा चैलेंज भी दिया, क्योंकि सबसे अंतिम स्पीकर रखा। अच्छे अच्छे आपने हीरो को देखा, फिल्मी लोगों को देखा, रियल हीरो को देखा, और अब लास्ट में उतारा मामूली शिक्षक को आपके सामने, उसमें भी गर्मी से परेशान, पंखा से झल रहे हमारे युवा साथी। मुझे भी सुन ले, थोड़ा मौका दे, ध्यान से सुने, मैं आपसे आरजू कर रहा हूं। और एक बात मैं और अवश्य कहना चाहूंगा कि मुझे यहाँ 35 मिनट का टाइम दिया गया है। मैं शिक्षक हूं, कम से कम 40-50 मिनट पढ़ाता ही, तो अगर मैं लास्ट स्पीकर अगर 5-7 मिनट देर भी हो जाए तो कोई आके मुझे इशारा न करे, भाई मुझे बोलने दो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यहाँ से इनविटेशन आया तो मुझे लगा कि मुझे जरूर जाना चाहिए। हालांकि अभी पढ़ाई बहुत चरम स्थिति पर है बच्चों की, लेकिन ऑर्गेनाइजर ने कहा तो मैं कहा जरूर मैं आऊँगा। यहाँ युवा साथी हमारे रहेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बहुत अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉजिटिव स्टोरी बताना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारे मेजर साहब ने कहा कि देश में ऐसी बात नहीं है कि केवल निगेटिव बातें हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव कहानियां भी हैं, बहुत सारी संघर्ष की कहानियां हैं, जिसे आपने अभी सुना कैसे पर्वत पर चढ़ी बच्ची। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां, वैसी कुछ सच्ची कहानियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। स्लाइड को करेंगे शुरू भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। सब शिक्षक का सब बना हुआ रहता है नोट्स ना, कि इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है। पहले ही कॉन्सेप्ट कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले क्या। इसलिए कहानी चलने दीजिए अपने अनुसार। 2 मिनट धैर्य रखिए। गर्मी में आप भी, हम भी, हम पर तो लाइट भी आ रही है, इसलिए चलिए बर्दाश्त किया जाए मिलजुल कर। 1-2 मिनट में हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं तो मेरा लैपटॉप जोड़ दिया जाएगा।
तो मैं बताने जा रहा था मेरे मित्रों कि धैर्य का फल मीठा होता है, मीठा मिला हमें, सब चीज़ें ठीक हो गई। मैं कहानी की शुरुआत एक लड़के से करना चाह रहा हूँ, संतोष से। संतोष बिहार के एक छोटे से गांव में रहता है। ऐसे गांव में रहता है जो शहर से कटा हुआ है, एक हाईवे के किनारे है गांव, बिहटा नाम है गांव का, और वहीं पर इसके परिवार खेतों में मजदूरी करते हैं। कुछ खेती होती है, कुछ मजदूरी मिलती है। परिवार में इतना भी खर्चा नहीं जुट पाता है कि घर की दाल रोटी चल पाए। संतोष साथ देने के लिए कि परिवार का खर्चा कैसे चले, शाम को सब्जी बेचता है सड़क के किनारे, हाईवे पर टोकरी में लेकर सब्जी बेचता है। अगर मान लिया जाए कुछ सब्जी बिक गई तो परिवार का खर्चा चलता है, इस तरह से चलता है। लेकिन संतोष के मन में पढ़ने की इच्छा है। लेकिन क्या करें मेरे दोस्तों, मैं युवाओं को, जैसा कि मेजर साहब ने बताया, वो इसी तरह से कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूँ, कुछ बोलने भी आया हूँ, सिर्फ कहानी नहीं बताने आया हूँ। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि संतोष इसी तरह के एक स्कूल में पढ़ता है। बिहार नहीं बल्कि आप जाइएगा तो हमारे देश के लगभग सभी राज्यों के गांव की स्कूलों की हालत यही है। स्कूल में शिक्षक आते नहीं है, स्कूल में बिजली नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब की तो बात ही छोड़ दीजिए, कुर्सी टेबल खिड़की दरवाजे भी चोरी हो चुके हैं, ऐसा स्कूल। अब बताइए, हमारे देश के स्कूलों की ऐसी हालत है। हम लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और सोचते हैं कि यही जीवन है। नहीं, हम युवाओं को बताना चाहते हैं कि गांव में, दूर दराज इलाकों में जाए और देखें समझे कि हमारे देश की स्थिति क्या है। सच में हमारे गांव में, देहातों में रहने वाली युवा नहीं पढ़ना चाहती है कि सरकार नहीं पढ़ाना चाहती है, ये मैं आपके सामने प्रश्न खड़ा करने आया हूं। आईआईटी में देख लीजिए, आईआईटी में अब दो ही मौके मिलते हैं, एक 12th पास करते के समय और एक 12th पास करने के बाद। कोई बच्चा बेचारा आता है गांव से, शहर आता है, पता करता है जेईई की कैसे तैयारी की जाए, कौन सी किताब पढ़ी जाए, कहां से शुरू किया जाए। इस तरह से कोई बच्चा आता है, तब तक समय निकल जाता है, साल भर बीत जाता है और वो रह जाता है। बड़े बड़े मेट्रो सिटी के लोग जो कि 7वीं क्लास से 6ठी क्लास से आज तक कोचिंग बच्चों को दे रहे हैं, वो लोग बाजी मार के ले जा रहे हैं। बताइए क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है। कपिल सिब्बल साहब अक्सर बोलते हैं कि भाई हम ऐसा बना रहे हैं सिस्टम जिससे गरीब आएंगे इसमें, जब मानव संसाधन मंत्री थे। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं, इस बार पूरे देश की इंजीनियरिंग की परीक्षा, कंबाइंड परीक्षा हो रही, आप लोग को मालूम होगा, जिसका नाम है जेईई में। अब देखिए गरीबों के साथ फिर मजाक। जो बच्चा गरीब है, जो कंप्यूटर से अवेयर नहीं है, जो गांव और देहातों में रहता है, वो एप्लीकेशन देता है तो उसके लिए फीस रखा गया है 1000 रुपया। और जो शहर का बच्चा है, जो अमीर बच्चा है, जो ऑनलाइन अप्लाई करता है, उसके लिए फीस रखा गया है 600 रुपया। बताइए, बच्चे हमारे, युवा हमारे पढ़ना नहीं चाहते हैं, गरीब बच्चे की सरकार पढ़ाना नहीं चाहती है। ये आपको सोचने के लिए मजबूर करने के लिए मैं आया हूं। खैर, संतोष में एक जज्बा था, उसमें जुनून था, पढ़ता था। उसके पास किताबें नहीं होती थी, किसी से उधार किताब मांग के पढ़ता था। लेकिन कभी हिम्मत, कोचिंग सेंटर में जाता है तो पैसे की जहां बात आती है वो चला जाता है। इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, वहां से भी उसको बेइज्जती होती है, वो चला जाता है। लेकिन संतोष हमारे पास आता है, मैं देखता हूं कि उसमें एक जज्बा है, उसके आंखों में एक सपना है, कुछ कर गुजरने की चाहत है। मैं कहा संतोष आओ हमारे पास रहो। 2 साल इतनी मेहनत करता है संतोष, रात दिन एक करके मेहनत करता है, और एक समय आता है कि संतोष आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लेता है और उसकी मां खुश हो जाती है। निकाले वाला नंद बाबू है, ये है सब कुछ से मदद नहीं देना। तो बेटा हमारा पढ़ गया तो यह खान पढ़ा, हम चाहूँ के लिए बहुत खुशी के बात है। लड़का हमारे निकल गए, गरीब के लड़का है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। संतोष जाता है आईआईटी खड़गपुर, वहां भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, सारे पिछले रिकॉर्ड को बदल देता है अपने मेहनत के प्रयास से। और लोग पूछते हैं, अच्छा संतोष तुम कहां से आए हो भाई,
तो सुपर 30 बिहार से पढ़ के आया हूँ। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है, बताओ तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? तो खेत में मजदूरी करते हैं। चर्चा इतनी जबरदस्त होती है कि बिजनेस का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिजनेस मैगजीन जो न्यूज वीक है, बिजनेस वीक है, वो संतोष की कहानी अमेरिका में छापता है कि कैसे एक बच्चा खेत में मजदूरी करके IIT में जाके इतना अच्छा परफॉर्मेंस करता है। समय आता है, अब देखिए संतोष को आज 10 साल बाद लगभग, संतोष को आप देख रहे हैं, सबसे लेफ्ट में देख रहे हैं, आज यूरोप में प्रोफेसर बना हुआ है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाता है, बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करता है और यूरोपियन को पढ़ाता है, गोरों को पढ़ाता है, सिर्फ चाहत के बदौलत, कुछ करने की तमन्ना के बदौलत। ये अनुपम को देखिए, अनुपम एक मामूली ऑटो ड्राइवर का बच्चा, ऐसा ऑटो ड्राइवर जिसके पास अपना ऑटो नहीं है, अपने पॉलिथीन और प्लास्टिक से घेर कर कुछ ईंट को घर बना के रहने वाला अनुपम। बहुत मुश्किल से घर में खाना जुटा पाते थे इसके पिताजी, लेकिन मां जानती थी कि नहीं, बच्चों को पढ़ाना है। पिताजी कभी कभी कहते थे कि नहीं, इसको भी मैं ऑटो सिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके ऑटो चलाना सिखा भी दिया था, लेकिन मां कहती थी बेटा कम से कम 10th पास कर जाओ। 10th पास कर गया अनुपम। उसकी मां हमारे घर आई, हमने एक टेस्ट लिया कि अच्छा बताओ तुम्हारा लेवल क्या है भाई, सुपर 30 में आना है तो एक लेवल तो होना चाहिए IIT क्वालिफाई करने के लिए। देखा कि वो टेस्ट में फेल कर गया। उसकी माँ रोने लगी, हमारी माँ से कही कि आप तो माँ का दर्द जानते हैं, कुछ करिए बहन जी, कुछ करिए। मुझे भी दया आया, हम कहा अच्छा आओ चलो यात्रा में शामिल हो जाओ। शामिल हो गया, 10th पास करके आया था। 2 महीना 4 महीना पढ़ते 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 इतना मेहनत किया, इतनी मेहनत की उसने कि हमने कभी सोचा नहीं था। मैं जितना भी बताता था उससे ज्यादा प्रयास करता था। और एक दिन आया कि भाई अनुपम बड़ा दुखी हुआ। उसके पिताजी कहीं पार्किंग कर रहे थे, पुलिस वाले पैसा मांगे कि लाओ पैसा, ऑटो चलाते इधर पहला नंबर तुमको देंगे, पैसा दो। बोला भैया पहला नंबर नहीं लेना है, छोड़ दो। उसको बहुत पिटाई की उसके पिताजी के। इसके बाद अनुपम बड़ा रोया, उसके पिताजी बेड पर आ गए। अनुपम गया और घर में कुछ दिन तक ऑटो चलाया और घर का खर्चा खाना निकाला। फिर 15-20 दिन बाद जब पिताजी ठीक हो गए फिर आया। फिर हमने कहा कि देखो गरीबी से बदला लेना है तो पढ़ो, सबसे बड़ा हथियार शिक्षा का हथियार है, रो मत, पढ़ो, यही तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, बहुत अच्छा करोगे, तब तुम बदला ले सकते हो। किसी मार पीट से कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। अनुपम कहा ठीक है सर। पढ़ा अनुपम, IIT क्वालिफाई किया, IIM क्वालिफाई किया और IIM से पढ़ाई करने के बाद आज 33 लाख पर ईयर के पैकेज पर काम कर रहा है अनुपम। मेरे दोस्तों ऐसी बहुत कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी मैं, एक दो छोटी कहानी और मैं बताना चाहूंगा। अनूप की कहानी बताए बगैर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं अनूप की भी कहानी बताऊंगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अनूप के पिताजी भी खेत में मजदूरी करते थे, गांव में रहते थे और गांव में जो खेती से आ गया, आमदनी हो गई, मजदूरी मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ऐसे ही काम चला। बरसात का सीजन था, धान की रोपनी बिहार में खत्म हो गई थी, मजदूरी भी मिलना बंद, घर में बच्चे रो रहे थे, अनूप भी रो रहा था, मां खाना दो खाना दो। आप लोग जानते हैं, महिला जानती होगी, जो यहाँ पर माँ होंगी वो जानते हुए कितना दर्द है कि बच्चा जब खाना मांग रहा है और घर में खाना नहीं। तब अनूप की माँ ने अपने पति से कहा कि जाइए जी, कुछ भी थोड़ा बहुत चावल ही ले आइए, इतनी गरीबी है, कोई बात नहीं, चावल ही ले आइए और चावल को हम लोग उबाल के और चावल और नमक खा लेंगे। पिताजी कहे कि देखो भाई, अब तो कोई दुकानदार भी नहीं दे रहा है उधार, सब गांव में जितने लोग हैं कोई साहूकार दुकानदार नहीं दे रहा है। अच्छा फिर भी मैं प्रयास करता हूं, ऐसा करो कि तुम लकड़ी जलाओ, अपना रखो, डेगची रखो, अपना बर्तन में पानी गर्म करो, जब तक वो खौलेगा, चावल डालने की स्थिति में आएगा, तब तक हम कहीं ना कहीं से कुछ चावल लाएंगे। चावल लाने गए अनूप के पिताजी। मेरे दोस्तों आज 12 साल हो गए, वापस नहीं आए, गरीबी के चलते घर छोड़ के भाग गए। लेकिन देखिए, हम लोग नहीं जानते हैं ऐसे लोगों को जो कि इस कठिन परिस्थिति में भी अपना हौसला बनाए रखते हैं। इनकी मां और बेटा अनूप गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह खोजे, पिताजी के बारे में जानकारी नहीं मिली। बिहार का एक नक्सल इलाका था औरंगाबाद, जहां की अनूप रहता था।
नक्सलियों से मिला, बोला भैया बताओ हमारे पति गायब है, तुम लोगों ने कुछ किया? देखा नहीं। थाने में फटकार मिली, थाना वाला कुछ नोटिस नहीं लिया, अंत में हार के वो लोग वापस आ गए। लेकिन मां हिम्मत नहीं हारी, कही बेटा तुम रहो हमारे साथ। कुछ लोगों ने कहा कि चलो अभी बच्चा छोटा है, थोड़ा और 1-2 साल में बड़ा हो जाएगा, किसी काम में शहर में ले जाके लगा देंगे। मां बोली नहीं, बगल में हाईवे बन रहा था, बोली कि वहां पर मैं जाऊंगी, मजदूरी करूंगी, मेहनत करूंगी, लेकिन बेटा को पढ़ाऊंगी, क्योंकि इनके पिताजी का भी सपना था बेटा को पढ़ाने के लिए। तीसरी चौथा में पढ़ता था उस समय। अनूप पढ़ने लगा, मेहनत करने लगा। फिर हाई स्कूल जाने की नौबत आई तो 7 किलोमीटर उसके घर से दूरी थी हाई स्कूल की। अब क्या किया अनूप कि डेली स्टार्ट किया, 7 किलोमीटर जाता था और 7 किलोमीटर पैदल वापस आता था और पढ़ाई करता था। और माँ हर दिन मजदूरी करती थी, रात में भी जहां तक हो ढिबरी दिया जिसको बोलते हैं जला के काम करती थी, चावल चुनने का और अनाज फटकने का काम करती थी और पैसे इकट्ठा करती थी कि बच्चे को किताब खरीद सके, भोजन दे सके। ऐसे करते करते अनूप 10th पास कर गया। 10th पास किया, गांव का पहला बच्चा जो 10th पास किया, लोगों को खुशी हुई। तब अनूप 10th पास किया। इस बीच खुशी थी, लेकिन उसके पास कुछ मित्र आए। उन्होंने बोला कि यार तुम 10th पास करके क्या किया? बाप का बदला नहीं लोगे? बाप गरीबी से भागा है तेरा, तुम उठा लो हथियार, चलो नक्सलियों के साथ उठाओ हथियार, अब भूंज दो उस थाने को जहां तुम्हें न्याय नहीं मिला है, उस अमीर आदमियों को मार दो जो तुम्हारे बाप को उधार नहीं दिया। तुम में कोई इज्जत की भावना नहीं है, कोई आत्मस्वाभिमान नहीं है तुम में। अनूप की मां कुछ नहीं बोली। अनूप जब आके बताया, बोली कि बेटा पढ़ो, क्योंकि अनूप की मां बोली नहीं, लेकिन जानती थी कि इस देश में सबसे बड़ा हथियार है इस देश को बदलने का, वो हथियार शिक्षा का हथियार है, जिसकी बात अभी नेल्सन मंडेला ने भी कही थी, मेजर साहब ने दिखाया, जो देश को बदल सकता है। पटना आता है, मां बेटा दोनों पटना आते हैं, क्योंकि उसके बाद गांव में इलाकों में पढ़ाई बंद हो जाती है। पटना आते हैं, पता बड़ा बड़ा कोचिंग का बोर्ड बैनर देखता है। कॉलेज में रेगुलर पढ़ाई नहीं थी कि भाई वो पढ़ के IIT कर जाए, इंजीनियर बन जाए, कहीं चल जाए, तो आता है। ये लोग जाते जाते सोते सोते सब जगह जब निराशा मिलती है तो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी जनता दरबार लगाते हैं हर मंडे को, वहां ही लोग जाता है। लेकिन गेट पर ही इनको मुलाकात हो जाती है, कुछ अधिकारियों से बोलते हैं क्या बात है भाई, क्यों मुख्यमंत्री जी से मिलोगे तुम लोग? पता कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, कोई कोचिंग करना चाहता है, इसका सपना इंजीनियर बनने का। बोला भैया ये तो आनंद कुमार का ही एड्रेस है, चल जाओ, शायद मदद करते। मुझे आज भी याद है कि जब ये दोनों आए थे, मई का महीना था, रिजल्ट निकला था उस समय 10th का, और ये लोग आए थे तो इनकी माँ के पैर में चप्पल नहीं था, एकदम पसीने पसीने, चेहरा लथपथ था। दोनों आए हमारे पास, अपनी कहानी बताई। तब मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने पूछा कि अच्छा बताइए आप कितने दिन से पटना में? तो हम लोग 3 दिन से हैं। हम कि 3 दिन से पटना में है तो खाना पीना रहना कहाँ होता है भाई, जब पैसों का इतना भाव है? तो मैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मैं सो जाती हूँ, हम दोनों सो जाते हैं डेली, एक पॉलीथीन प्लास्टिक बिछाकर दोनों सोते हैं, और कुछ चावल लाए उसको फुला के नमक के साथ खा लेते हैं, और फिर शुरू से अभियान रात तक शुरू करते हैं, कोई पढ़ाने के लिए आसरा दे। देखिए मेरे दोस्तों, ये कहानी के लिए मैं, या इंस्पायर करने के लिए ही सिर्फ मैं नहीं सुना रहा हूँ, आपको सोचने के लिए सुना रहा हूँ कि हमारे देश के युवा पढ़ना चाहता है, चावल फाँक फाँक के, बिना चप्पल के भी पढ़ना चाहता है, और सरकार उसके लिए नहीं व्यवस्था की है, और आप लोग नहीं सोचेंगे तो देश का क्या हाल होगा, ये आप जरूर आपको सोचना होगा। और यही सोचे, इसके लिए मैं आया हूं। फिर मैं ये आपको बोलना चाहता हूं, आप जरूर सोचे कि आपके पास सुविधाएं हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से, अपर मिडिल क्लास फैमिली, अपर फैमिली से, आपके पास सुविधाएं, लेकिन वो बच्चा, ऐसा बच्चा हमारे पास आता है तो उसकी जिंदगी कुछ बनती है। ऐसी बच्चों की संख्या 100, 200, 1000, लाख नहीं, करोड़ों में है युवा हमारे साथी, जो अपने संसाधन के अभाव में, रिसोर्सेज के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन फिर आया, बताया हम क्या हो, हमारे साथ रहने लगा, पढ़ने लगा। अनूप मेरा स्टूडेंट हो गया, पूरा मेहनत करता था, जिंदा दिल इंसान था, गाना सुनाता था सभी बच्चों को, सब बच्चों के साथ खेलता कूदता, पढ़ते 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 एक दिन आया कि अनूप IIT का एग्जाम में गया। आया, खुशियों का ठिकाना नहीं, सर मेरा IIT हो जाएगा। जब उसका IIT हो गया, तब IIT बॉम्बे में गया।
बॉम्बे में भी आईआईटी में जाके आप बॉम्बे में आईआईटी में पढ़ने वाले किसी बच्चे से पूछिएगा, भी फाइनल ईयर का ये छात्र है, सब बताएगा अनूप कौन है, इतना एक्टिव रहता है अपना स्टूडेंट एसोसिएशन में, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पे। तो आईआईटी करने के बाद अनूप क्या किया कि वहाँ भी मेहनत किया, वहाँ सामाजिक काम भी किया और साथ साथ क्या किया कि अपने गांव में आके बच्चों को भी पढ़ाया। और अभी फाइनल ईयर में कैंपस सिलेक्शन में उसकी नौकरी भी लग गई है और अभी वो ट्रेनिंग करने गया और मुझे तस्वीर भेजा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो बच्चा धरती पर ठीक से नहीं बैठ सकता था, आज दुनिया के सबसे ऊंचे इमारत बुर्ज खलीफा में बैठकर ट्रेनिंग कर रहा है अनूप। तो मेरे दोस्तों, जिंदगियां ऐसी पलती, गरीबी का दर्द, घर में इलाज के लिए पैसे नहीं, खाने पीने के लिए ठीक से पैसे नहीं, शशि नारायण का छोटा भाई गुजर जाता है, घर में मातम का विषय है, लेकिन शशि नारायण हिम्मत नहीं हारता। शशि नारायण हमारे पास आता है, मैं संक्षेप में बताता हूं, उसकी भी सब यही कहानी, उसके पिता हमारे पास लाते हैं, पिता पुत्र आते हैं, कहानी ही नहीं बता पाते, सिर्फ रोते रहते हैं। हमने बोला भाई बताइए क्या समस्या, बताए। शशि रात दिन एक मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी डर जाता है, बोलता है कि सर घबराहट हो रही है, लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा। कहाँ पब्लिक स्कूल के पढ़े लड़के, कहाँ इतना अच्छा ट्रेनिंग वाला, हमसे सर आईआईटी नहीं होगा। हम कहते उठो करो, गरीबी इतिहास लिखता है, देखो इतना बच्चे पहले कर चुके, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, पढ़ो। पढ़ते 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 एक दिन आता है, शशि नारायण आईआईटी क्वालिफाई करता है, आईआईटी खड़गपुर में जाता है, वहां भी तो उसको छोटा मोटा ब्रांच मिलता है आईआईटी खड़गपुर में, लेकिन एक साल इतना मेहनत वहां भी जाके करता है कि उसका कंप्यूटर साइंस में ट्रांसफर हो जाता है। फिर 3 साल मेहनत करता है और करते करते आपका यूरोप के सबसे बड़े स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा देता है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आता है। और यही शशि नारायण आज फ्रांस में एक रिसर्च स्कॉलर है और वहां कंप्यूटर साइंस लोगों को पढ़ा रहा है, आप देखो। तो ऐसी 330 कहानियां हमारे पास हैं जिसमें बच्चे एकदम गरीबी से आए, एकदम सड़क के किनारे फुटपाथ पर, कोई सब्जी बेचने वाला का बच्चा, कोई घड़ीसाज फुटपाथ पर बनाने वाला, कोई मजदूरी करने वाला, कोई दरवानी करने वाला, ऐसा बच्चा में भी अगर जज्बा भरा जाए, उनको थोड़ी सुविधाएं दी जाए तो हमारे बच्चे अच्छे कर सकते हैं। और अगर ये काम सरकार करती है, पूरी समाज मिलकर करती है, तो हमारा देश का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाज हम लोग जरूर लगा सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आप इसको शुरू क्यों किया, क्या कहानी थी भाई कि आप शुरू किया, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया। तो मेरे दोस्तों, मैं भी बचपन में चाहता था कि मैं मैथमेटिशियन बनूं, बहुत अच्छा रिसर्च करूं, नया नया खोज करूं, एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन की तरह आगे मेरा जीवन बढ़े। हमारे पिताजी पोस्टल डिपार्टमेंट में क्लर्क नहीं थे, बल्कि वो सॉर्टिंग करते थे लेटर का। तो चलती हुई ट्रेन में पहले जो पुराने लोग हैं जानते थे, लेटर सॉर्टिंग होता था, रेलवे मेल सर्विस था, उसी में पिताजी चिट्ठी छांटते थे। जब रेलवे स्टेशन आता था तो एक बैग दे देते थे, फिर दूसरा बैग लेते थे। इस तरह से पटना से कलकत्ता, कलकत्ता से पटना का यात्रा करते थे। उनके दिल में था कि मेरा बेटा पढ़े। जब भी मैं कुछ कहता था कि पिताजी एक लाके दीजिए बायोग्राफी किसी साइंटिस्ट का, तो लाके देते थे। मैं पढ़ता था साइंटिस्ट का बायोग्राफी, मैं पढ़ता था मैथमेटिशियन का बायोग्राफी और अपने आप मोटिवेट होता था। मैं सपना देखता था, मेरा कोई हीरो फिल्मी स्टार नहीं था, मेरा कोई हीरो उस जमाने में क्रिकेटर नहीं था, मेरा हीरो रामानुजन, आइंस्टीन और थॉमस एडिसन टाइप के हीरो लोग हमारे लिए हीरो थे। तो मुझे लगा कि चलो, पढ़ते पढ़ते 10th पास किया, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, मामूली गवर्नमेंट स्कूल से 10th पास करने के बाद उस स्कूल में भी थोड़ी जिसकी आमदनी अच्छी थी वो चला गया दिल्ली पढ़ने। मैं पटना यूनिवर्सिटी में रह गया। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि हमारे कुछ अच्छे टीचर मिले, देवी प्रसाद वर्मा, बाल गंगाधर बाबू, साहबुद्दीन साहब, सब लोग अच्छे टीचर्स मिले। वो हमें बहुत मोटिवेट किया। जब भी मैं उनके घर पर गया पढ़ने, एक्स्ट्रा टाइम दिया, बताया। और मैं जब ग्रेजुएशन कर ही रहा था, उसी टाइम, पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उसी टाइम मेरे 4-5 नए फार्मूले और प्रॉब्लम लंदन के जर्नल्स में पब्लिश हो गए और हमारी एक यूनिवर्सिटी में पहचान हो गई थी। लोग जानने लगे थे कि भाई हम, कोई भी कॉन्फ्रेंस होता था छोटा मोटा यूनिवर्सिटी में, तो टीचर्स इनवाइट करते थे, कुछ नया खोज करो, तुम भी सुनाओ। मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता था। ग्रेजुएशन जब पूरा होने को था, तब एक टीचर ने कहा कि तुम क्यों नहीं, अब तुम यहाँ मत पढ़ो, तुम बाहर चले जाओ, तुम कैम्ब्रिज में अप्लाई कर दो। उस समय नेट का भी जमाना नहीं था, फिर भी
टीचर्स ने एड्रेस वगैरह दिया, मैंने चिट्ठी लिखी, एप्लीकेशन आया, रिकमेंडेशन भेजा, सभी लोगों ने, मेरा एडमिशन हुआ, घर में खुशियां आई। लेकिन मेरे दोस्तों, जितनी खुशियां आई उससे ज्यादा गम था कि हमारे पास फुल स्कॉलरशिप की बात तो नहीं हुई थी, और आधा स्कॉलरशिप ट्यूशन फी अगर माफ भी हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमारे पास तो हवाई जहाज पर चढ़ने का किराया भी नहीं था। पिताजी बड़ा गंभीर हो गए, वो बहुत चिंतित हो गए। हमने कहा पिताजी आप टेंशन न लें, अब जो होना रहेगा होगा, हम लोग प्रयास करेंगे। मेरे दोस्तों, हमने बहुत प्रयास किया उस जमाने में, बहुत लोगों से कहा कि भाई मदद कर दे, कोई मदद नहीं किया। उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में भी आया पूरे बिहार झारखंड में कि भाई ऐसा ऐसा लड़का है, इसके पेपर पब्लिश हो गए हैं, कैम्ब्रिज से एडमिशन आया है, कुछ 50,000 1 लाख रुपया कोई अगर मदद मिल जाता तो अच्छी बात थी। कोई मदद नहीं है। उस समय मुझे पता चला कि ये जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, जो एनजीओ होती है, उन सारे एनजीओ के भेद खुल गए और उनकी सच्चाई सामने हमारे आ गई। बड़े बड़े मेरे दोस्तों, धर्म के नाम पर चलने वाले संगठन जो दावा करते हैं कि मैं लोगों का जीवन तब्दील करता हूं, मैं गया कि भाई कुछ मदद कर दे। क्या बोला भाई? बोला कि भाई मदद, पहले धर्म बदलो तुम। हम कि भैया धर्म बदलने हम नहीं आए, मदद लेने आए। तो नहीं, धर्म बदलोगे फिर हम लिखेंगे आगे, रिकमेंड करेंगे। वहां से पत्ता कट गया। लोग कहते हैं मेरे दोस्तों, जात समाज की बात कहते हैं। मैं अपने जाति के नेताओं के पास पिताजी लेके गए, बोला कि एकदम पैसा मिलेगा, जरूर मिलेगा, आइए कल गया। बोला कि देखिए फलना फलना जी है, उनकी बेटी है, अगर शादी करिएगा तो दहेज के नाम पर आपको पैसा मिलेगा, ऐसे पैसा नहीं। हम सोचे भैया कौन शादी ब्याह के चक्कर में पड़ना जाता है, छोड़ो भैया, नहीं जाएंगे, कोई दूसरा धंधा देखेंगे, खोजेंगे। मैं निराश हो चुका था, हताश हो चुका था। लेकिन हमारे हिंदी डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमें बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कल आओ, कल एक प्रोग्राम है, वहां पर आओ, वहां पर हमारे मिनिस्टर आ रहे हैं और वो तुमको मदद करेंगे, उनसे मैं तुम्हारे बारे में कहूंगा। एक किताब का, एक पुस्तक का लोकार्पण है, विमोचन है, वहां आओ। मैं गया वहां पर, ऐसे ही सभा चल रही थी, प्रोग्राम खत्म हुआ, जब वो नीचे उतरे तो मैं भी वहां पर खड़ा था। प्रोफेसर साहब ने परिचय करवाया, मंत्री जी का कल आओ, 11 बजे पक्का तुम आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 11:15 ही बज रहा था कि मैं वहां पर पहुंच गया उनके गेट पर। जैसे ही 11 बजा, मैं गेट के सामने था। संतरी पूछा कौन भाई, क्या बात है? मैंने लिखा आनंद कुमार, गणित शोधकर्ता, ब्रैकेट में, सर कल 11 बजे का टाइम दिया था आज के लिए, आपने बुलाया था। एक पत्र 2-3 लाइन का लिख के दिया। मंत्री जी ने बहुत स्वागत के साथ बुलाया। पूरे लोग सफेद पोश 8-10 बैठे हुए थे, उनका कमरा भरा हुआ था। तो और बात चल रही थी कि देखो इस बार इलेक्शन है, इतना यहाँ जाति का वोट है, इसका ऐसा है, ऐसा है, कुछ बात चल रही थी। मैं भी वहां पर बैठा हुआ था, लेकिन मंत्री जी ने बैठा दिया, लेकिन हमसे कोई बात ही नहीं की। अगर उसको फिल्म में दिखाया जाए उस दृश्य को, तो लोग कह ही नहीं सकते कि वास्तविक है। सब बोला कि अरे ये तो काल्पनिक है, एक फिक्शन डाल दिया, वो ऐसा दृश्य। तब गया, सब जाति का खेल चल रहा है। तो उतने ही में हम सोचे कि भाई 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट हो गया, अब कितना देर बर्दाश्त करें। हम बोला कि सर आपने बुलाया था। मंत्री जी ने बड़ा अच्छा कहा, बुलाया था, मैं सभी नव युवकों को बुलाता हूं, युवाओं को बुलाता हूं जो अच्छा करते हैं देश और समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, मैं उनको बुलाता हूं। मैं तुम्हें भी बुलाया। भाई तो आदमी पैसा का बात ही नहीं कर रहा है, बड़ी दिक्कत टाइप की बात लगी। भाई अब क्या किया जाए भाई, परेशानी। फिर वो बतिया कि हाँ भाई इधर वोट है, उसको टिकट देंगे तो फायदा है, मुख्यमंत्री जी नहीं समझ रहे क्या गया। फिर बात हुई, फिर 10-15 मिनट हुआ कि अच्छा हम भी दिमाग लगाते हैं, हम बोलते हैं ऐसी बात कि वो पैसे पर आएंगे। भाई शायद भूल गए हो। हम कि सर आप बुलाए थे पैसे के लिए, कहा था सर इसलिए बुलाया था। हाँ बुलाया था पैसे के लिए, समझाने के लिए बुलाया था। बेटा पैसा के चक्कर में कभी ना पड़ना, अगर पैसे के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा रास्ता बर्बाद हो जाएगा, तुम भटक जाओगे, इसलिए ईमानदारी से काम करो, पैसे के चक्कर में नहीं पड़ो। मैं यही समझाने के लिए बुलाया था। कि भाई अब उठ के चलने में भलाई, फिर भी हम सोचा चलो भाई 2-4 मिनट 10 मिनट और झेलते, दिमाग लगाते हैं, मैथमेटिशियन का दिमाग। इस बार तो मंत्री को मैं हरा ही दूंगा, बोल ही देंगे वो हाँ या ना। हमने बोला कि सर आप बोले थे मदद के लिए विदेश जाना था, इसीलिए आप बुलाए थे। 20 मिनट बाद फिर बोला,
हाँ, बोला था विदेश जाने पर याद आई बात, बोला था विदेश जाओ, अच्छा काम करो, ऊंची शिक्षा लो, लेकिन फिर वापस इसी मिट्टी पर आओ और यही भारत का निर्माण करो, यही समझाने के लिए बुलाया था। तुम समझदार हो, समझ गए होगे सब मेरी बात। हम कि हाँ सर समझदार हैं, चलते हैं सर, प्रणाम सर। चल दिया। उनके क्वार्टर से निकला, सामने एक चाय वाला था सड़क के उस साइड, बेचारा ठेले पर चाय बेच रहा था। बड़ा निराश मन, साइकिल लगा दी वहां, कहा कि भैया चाय पिला दो। चाय पिलाया उसने। चाय पिलाने के बाद बोला कि 1 रुपया या 1.5 रुपया जो था उस समय चाय का हमने दाम दिया। बोला बेटा तुम रोने रोने टाइप कर रहे हो, क्या बात है, डांटे उठे क्या मंत्री जी सामने से? हम कि नहीं भैया डांटे नहीं, ऐसी ऐसी बात है। अरे तुमको कौन भेजा वहां? डांटा वो भी, कौन भेजा तुमको वहां? ये मंत्री पिछले 3 महीना से उधार चाय मंगा मंगा के पी रहा है, पैसा अभी तक नहीं दिया। अब तुमको क्या पैसा देगा? इस चाय वाला का भी शोषण करता है, वो तुमको पैसा देगा? कौन भेज दिया? मेरे दोस्तों, चाहे जो भी रूप धारण कर ले, जो भी नकाब पहन ले, लेकिन आज ज्यादातर नेताओं की यही सच्चाई है। मैं बताना चाहता हूं, इसलिए लोगों से सावधान रहिएगा। फिर चला 1994 का समय था। 1 अक्टूबर 1994 को कैम्ब्रिज ज्वाइन करना था, लेकिन हमारे लिए बड़ा मनहूस दिन था 1994 का 23 अगस्त। हमारा भाई जो BHU में वायलिन सीखता था उस समय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, वो भी आया हुआ था घर पर। हम भाई थे, माताजी थे, हमारा एक चचेरा भाई, संयुक्त परिवार था, बैठा था, खाना पीना खा रहे थे हम लोग। अचानक पिताजी बातचीत कर रहे थे, बेटा को कैसे भेजेंगे, क्या भेजेंगे। हम लोग खाना जैसे ही खत्म किया, पिताजी बिछावन पर गए। करीब 10 बजने को हो गए थे टाइम, और पिताजी की सांस फंसने लगी और उसी समय हार्ट अटैक हो गया, पिताजी गुजर गए। पिताजी अचानक, जैसे बच्ची अभी बताई कि पैर कट जाएगा, मैंने एक पल पहले नहीं सोचा था। हमारी जिंदगी में हमने जस्ट 1 मिनट पहले, मेरा परिवार नहीं सोचा था कि हम लोग पिताजी को खो देंगे। विश्वास ही नहीं था कि पिताजी गुजर गए। हम लोग को लगा हो सके सांस रुक गया हो, कुछ बात हो। हम लोग डॉक्टर को बुलाने के लिए गए। डॉक्टर, हम लोग जिस इलाके में रहते हैं मेरे दोस्तों, छोटी आमदनी वाले लोग थे, स्लम इलाका था, पानी से, बरसात का 23 अगस्त महीना था, पूरा भरा हुआ था, भर भर घुटने से ऊपर पानी भरा हुआ था। बगल में एक कंपाउंडर रहते, वहां पर मैं गया, रिक्वेस्ट किया, वो आए। वो समझ गए कि भाई ये गुजर गए, लेकिन कंपाउंडर साहब भी हमको इतना प्रेम करते थे कि वो बोल नहीं पाए कि पिताजी गुजर गए। बोले कि ले जाओ पटना मेडिकल कॉलेज। अब पटना मेडिकल कॉलेज जहां हम लोग रहते हैं, पटना शहर में ले जाना इतनी कठिन बात कि बहुत मुश्किल थी। लेकिन फल बेचने वाले जो ठेले पर बेचते हैं फल, वो लोग हमारे पड़ोसी थे। पिताजी का डेड बॉडी हम लोग समझ रहे कि जीवित है, उन ठेले पर रखा और पटना मेडिकल कॉलेज में ले गया। वहां भी लापरवाही, घंटों लोगों ने नहीं देखा। जब हमने कहा कि देखिए हमारे पिताजी को, डॉक्टर से बहस लड़ाने का प्रयास किया, तो वहां भी पुलिस ने लाठियां बरसाई। खैर पिताजी जब गुजर गए, कहानी खत्म हुई। सारी घर की जिम्मेवारियां हम पर आ गई। जब घर की जिम्मेवारियां आ गई हम पर, तो हमारे पास 2 रास्ते थे मेरे दोस्त। एक रास्ता था कि पिताजी के जगह पर गवर्नमेंट जॉब, सेम जॉब मिल रहा था हमें। चूंकि मैं ग्रेजुएशन कर चुका था उस समय, मेरा रिजल्ट आ चुका था, इसलिए मुझे क्लर्कियल जॉब मिल रहा था पटना में, अनुकंपा के आधार पर, दया दृष्टि के आधार पर। दूसरा था कुछ अपना करना। मेरा शुरू से मन था कि मैं मैथमेटिशियन बनूं, शिक्षक बनूं, कुछ अच्छा करूं, लेकिन सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। सारा तरफ अंधकार दिखाई पड़ रहा था, मैं क्या करूं, नहीं करूं। फिर भी हमने फैसला लिया, चलो रिस्क लेते हैं। मां बोली कि बेटा सोचो मत, तुम्हारे दिल में जो भी आता है वही करो, तुम घबराओ नहीं, जो भी होगा मैं तुम्हें खिलाऊंगी, पैसे की चिंता ना करो, घर का खर्चा मैं चलाऊंगी। तब आप लोग देख रहे हैं, इसी कंडीशन में मेरी माँ पापड़ बनाती थी, और मेरी माँ पापड़ बनाती थी, और मैं और मेरा भाई दोनों झोले में लेकर सड़क के किनारे आनंद पापड़ ले लो, आनंद पापड़ ले लो, हल्ला करके मैं लोग पापड़ बेचता था शाम के 3 घंटे, और उसी से जो आमदनी होती थी मेरी घर का खर्चा चलता था। कोई परिवार, कोई खानदान, कोई रिश्तेदार नहीं आया, 100 रुपया भी नहीं दिया कि भाई तुम कुछ सरवाइव करो। हमारे घर में हमारी बूढ़ी दादी थी, बीमार चलती थी, विकलांग चाचा जी थे, सारी जिम्मेवारियां हम लोगों की थी। खैर चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। साल 2 साल के बाद हमारे भाई ने सजेस्ट किया, प्रणव कुमार ने, कि क्यों नहीं भैया आप कुछ पढ़ाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप में पढ़ाने का स्किल है, आपका सपना है पढ़ाने का, तो पढ़ाने का ही काम करिए।
तब हमने 2 स्लम के बच्चों को लिया, कुछ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हमारे तीनों गुरुजन हैं बैठे हुए थे, बुलाया और एक रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की स्थापना की और शुरुआत 2 बच्चों से की, सिर्फ 2 बच्चों से शुरुआत की और उन्हें पढ़ाने लगा। पढ़ाते पढ़ाते 2 से 4, 6, 8, 10 और पहले ही साल 30-40 बच्चे हो गए। उन बच्चों से मैं कोई पैसा नहीं लेता था, एक डब्बा रखा हो रहा था, जिसको जो इच्छा होती थी दे देता था। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ कि धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ी, लोग पटना के दूर दूर इलाकों से आने लगे, गांव से भी आने लगे, अगल बगल के गांव से लोग आने लगे और हमारे पास 500-600 बच्चों की भीड़ जुट गई। कई ग्रुप में मैं पढ़ाने लगा और मैं सबसे कम उस समय 500 रुपया 1 साल का मैंने लेना स्टार्ट किया, लेकिन 500-500 रुपया भी 500-600 लोग देते थे और हर साल इतना रुपया आने लगा। तो 2-3 सालों में हमारी स्थिति घर की काफ़ी सुधर गई। हमने घर में पानी का इंतजाम किया, नल लगवाया, 2-3 कमरे घर मकान बनवाए, थोड़ा अच्छा पेंट पोचाड़ा करवाया, एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा और नॉर्मल जिंदगी चलने लगी। तब लोकप्रियता और बढ़ी 1-2 साल में। तो फिर हमारे पास 2 रास्ते थे, कोटा से, दिल्ली से लोग आने लगे, चलो और मैं नौकरी देता हूं, तुम मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, उसमें मैं थोड़ा नाम और पहचान बना चुका था, तुम आओ हमारे के यहाँ काम करो। कोई कहे कि पार्टनरशिप पर यहाँ बड़ा, मैं बिजनेसमैन हूँ, फिनांस करता हूँ, तुम बड़ा कोचिंग सेंटर खोलो, उसका फ्रेंचाइजी बांटो, करोड़ों करोड़ रुपया कमाओ, तुम हमारे साथ आ जाओ। हमने फिर देखा क्या करें ना करें। इतने में एक लड़का आया, बोला कि सर कुछ दिनों के अंदर कि सर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं, पैसा मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा और आखिरी इंस्टॉलमेंट उस समय दूंगा जब पिताजी हमारे खेतों से आलू निकालेंगे। हमने कहा भैया जब तुम इतनी गरीबी से हो तो फ्री में पढ़ो, बहुत बच्चा फ्री में पढ़ता है। बच्चा स्वाभिमानी था, नहीं मैं पैसा दूंगा सर। हम कहे तुम रहते कहाँ हो भाई? तो जब पैसे ही नहीं है तो पटना में तुम सर्वाइव कैसे करते हो? तो एक बहुत बड़े आदमी है, फल्ला फल्ला जगह बीएन कॉलेज के सामने रहते, उनके घर के सीढ़ियों के नीचे स्पेस में वहीं रहता हूं और मेरा ड्यूटी है, कोई आता है तो मैं गेट खोलता हूं और कोई चला जाता है तो मैं बंद करता हूं, अब मैं पढ़ता हूं, मेरा यही ड्यूटी है। हम कहे कि भाई लिखो एड्रेस। हम दोनों भाई गए, देख के दंग, पसीने से लथपथ, जितना हम लोग गर्मी महसूस करते उससे कई गुना गर्मी में बेचारा घुटन महसूस कर रहा था और पढ़ रहा था। उसी दिन आइडिया आया कि क्यों नहीं हम लोग सुपर 30 की शुरुआत करें। तब हम लोगों ने सुपर 30 की शुरुआत की। मेरे भाई ने बताया कि इस प्रोग्राम के लिए क्या क्या चाहिए, हम लोगों ने डिस्कस किया, दोनों भाई मिलकर हम लोग सुपर 30 की एक परिकल्पना किए, माँ से डिस्कस किए। माँ ने कहा कि ठीक है, जब तुम लोग बेटा बच्चों को फ्री में पढ़ाओगे, अपने घर में रखने के लिए तैयार हो, तो मैं पापड़ बनाने के बजाय उन 300 बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, तुम चलो। हमारे पुराने विद्यार्थी तैयार हो गए कि सर जब आप मैथमेटिक्स पढ़ाइएगा तो मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आपका साथ दूंगा। और ये 300 बच्चों का हो रहा है कि बेटा को मेरा एक दिन जाना था बाहर कैम्ब्रिज, पैसा का अभाव में नहीं जा पाया। आज बच्चे लोग को मैं खाना बनाकर खिलाती हूँ, IIT करके मेरे यहाँ से जाता है, हमको बहुत खुशी होता है, लगता है मेरा ही बच्चा सब है। ये अपना न हुआ तो दूसरों को होना ही चाहिए। ये सिलसिला चल पड़ा। अब देखिए लोग हिंदू मुस्लिम जाति के नाम पर देश को बांटते हैं, जज्बा को ललकारते हैं, लोगों को लड़वाते हैं। लेकिन सच्चाई है, लास्ट ईयर हमारे पास 2 मुस्लिम बच्चा था, हंजला और सफ़ी, लास्ट ईयर की तस्वीर है। दोनों ईद में मैंने छुट्टी कर दी कि भाई जाओ तुम अपना ईद मनाओ। इसलिए मनाओ क्योंकि पूरी छुट्टी है। अगर हम लोग हिंदू हैं, अगर हम लोग केवल तुम लोगों को छुट्टी देते हैं, यहाँ पढ़ाई चलती है, मन में सोचा तो इन लोगों को दुख लग गया, पूरी छुट्टी जाओ, 3 दिन की छुट्टी। बोला हंजला, बोला कि नहीं, महबूब हंजला दोनों बोला सर चाहे जो भी हो जाए मैं यहीं रहूंगा। जब मैं दुर्गा पूजा आपके साथ मनाता हूँ, दीपावली मनाता हूँ, तो ईद क्यों दूसरे के साथ मनाऊंगा? आप ही हमारे माता पिता हैं, इतना आप मेहनत से हमारे पास रखते हैं, क्यों मैं जाऊं? बताइए सर मैं क्यों जाऊं? हमने कहा कि ठीक है भाई, ईद कैसे मनाई जाती है? बताया कि देखिए ऐसे ऐसे टोपी खरीद लीजिए। हम लोग पहले गला मिलन किया, फिर खाना जो भी हमसे बन पड़ा हम लोग ने बनाया, पूरी सेवई। आप चित्र में हमारी पत्नी को भी देख रहे हैं, ये भी IITN है। IIT से ग्रेजुएशन करने के बाद, IIT से BTech करने के बाद, बेंगलोर में नौकरी करने के बाद, कई साल नौकरी करने के बाद छोड़कर हमारे मिशन में लगी कि नहीं मैं भी कुछ क्वेश्चन बनाऊंगी। माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको खाना में मदद करूंगी, आप ही के प्रोजेक्ट में हम भी आते हैं। तो हम लोग का परिवार इसी में चलता है। मेरा एक छोटा बेटा है, वो बच्चों को कभी कभी जब पढ़ते रहता वहाँ
तंग उंग करता है, बदमाशी करता है, जाके खाते रहता है, उठा के कुछ खा लेता है। तो ऐसे ही एक मेरा पारिवारिक है। फिर डोनेशन आया। देखिए मेरे दोस्त, वो उगते हुए सूरज को ही सब नमस्कार करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई नहीं। जब लगा कि नहीं भाई इसका प्रोग्राम सक्सेसफुल है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो डोनेशन देने वाले लोग आए, कहे कि भाई पैसा ले लो, जितना भी पैसा लेना है ले लो, तुम चलाओ। बहुत सारे एनआरआई का ईमेल आया। एक चित्रलेखा मैगजीन में यहाँ छपा हमारी कहानी। अमेरिका से कई गुजरातियों ने कहा कि मदद करने की बात कही। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा, कपिल सिब्बल ने भी कहा, बुलाया कि बेटा मदद ले लो। हमकी मदद आपको देना है तो आईआईटी की पॉलिसी बदलिए एंट्रेंस टेस्ट का, जिससे गरीब बच्चा है। कपिल सिब्बल ने कहा क्या क्या तुम्हारे पास कुछ आइडिया है, कुछ प्लान है? मैं तुरंत जेब से निकाला, सर यही रिटेन प्लान है, ऐसा ऐसा है। तो अच्छा है, ठीक है, मैं देखूंगा, जरूर करूंगा बेटा, तुम विश्वास रखो, मैं करूंगा, घबराना मत। बहुत दिन गुजर गया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना नहीं हुआ। फिर एक दिन कपिल सिब्बल जी दूसरे कार्यक्रम में मिल गए अवार्ड देने। अवार्ड वाले प्रोग्राम में लोगों ने कहा, आनंद जी कुछ बोलिए। हमने कहा सर आपने बोला था पैटर्न को बदलने के लिए, पॉलिसी को चेंज करने के लिए हमने सजेस्ट किया था, आपने किया कुछ नहीं सर। मेरा नम्र निवेदन है विचार किया जाए। सिब्बल साहब ने बोला अच्छा विचार करते हैं, बात करते हैं, लोगों से विचार करते हैं। विचार करते रह गए और इनका विभाग ही बदल गया। हो सके सरकारी ही बदल जाए, अब विचार ही करते रह गए। बहुत लोगों ने डोनेशन के लिए किया। सिंधिया जी ने कहा, अखिलेश जी ने बुलाया, मोन्टेक सिंह ने कहा, रमन जी ने कहा, बहुत लोगों ने, कलाम साहब ने भी बधाई दिया, बहुत लोगों ने बुलाया, शाबाशी दी, बधाई दिया, डोनेशन के लिए कहा। मनमोहन जी ने भी एक बार बुलाया, कहा बेटा तुम आए बड़ी खुशी है, चाय पियोगे बेटा? हम जरूर चाय पिएंगे भाई, आपके साथ चाय पीने का सौभाग्य देश के प्रधानमंत्री, पिलाइए चाय। आए गई चाय, दोनों चाय पीने लगे कि बेटा तुम क्या मुझसे चाहते हो? हम क्या आपका आशीर्वाद, और कुछ नहीं चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो अच्छा। हम कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर वो काम चल जाता है, ऐसे ही छोटा मोटा से काम चल जाता है। नहीं नहीं पैसा ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो। हम कि सर आप ईमानदारी से बताइए, इनकी एक पॉजिटिव बात मैं बताने जा रहा हूँ, आप ईमानदारी से बताइए आप कहाँ पढ़े? तो मैं तो स्कूल में गांव के पढ़ा हूँ। हम कि आप कैसे स्कूल में थे? तो मैं तो नीचे बोड़े बिछा के पढ़ता था। कि बोड़ा पर बैठते हुए आप इस गद्दी पर आए। आपको सर छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन याद रखना चाहिए, और आप लोगों को भी दोस्तों, कि अच्छे विद्यालय के लिए, अच्छे स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि जुझारू और मेहनती शिक्षक की जरूरत है। ये बात याद रखना चाहिए। मोदी जी ने भी बुलाया और मुझे सम्मान किया। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, मोदी जी से फिर मुलाकात उनके घर पर अहमदाबाद में हुई। कहीं तो आपके मुकेश अंबानी ने बुलाया, कहा तुम्हारे पीछे आर्थिक शक्ति है आनंद, क्या मदद करूं? मैंने कहा आपका आशीर्वाद काफी है। इतना इज्जत उन्होंने दिया कि मैं जब गया तो अपने पीछे ऑफिस में जहां प्रोग्राम किया था, मेरी तस्वीर लगा के रखे हुए थे। कहा कि कभी तुम्हारे मन में ऐसी विचारधारा है कि कुछ पैसे की जरूरत हो तो हमारे पास आ जाता। हमने कहा, और सबको मैं कहना चाहता हूं कि आज तक मैंने किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया। हम और हमारी टीम, हमारा परिवार शाम को कुछ बच्चे को, जो प्रिविलेज क्लास के बच्चे हैं, 8वां 9वां 10वां 11वां के बच्चों को बुलाकर हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, और वो ट्यूशन से जो पैसा आता है उसी से मेरे परिवार की दाल रोटी और उन 300 बच्चों का दाल रोटी चलती है। किसी से मैंने आज तक 1 रुपया चंदा नहीं लिया। मैं दिखाना चाहता था कि आप में बिल पावर है, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, कोई चंदे की जरूरत नहीं है। कुछ कदम आगे तो बढ़ा के देखे, लेकिन चंदा भी नहीं लिया, किसी का कोई बुरा भी नहीं किया, बच्चों का भविष्य भी बना, लेकिन फिर भी लोग लग जाते हैं। जैसे अभी बच्ची ने बताया, शिकायत करने वाले लोगों की कमी नहीं है। बड़े बड़े पटना में आप देखिएगा, कहीं भी जाइएगा, कहीं भी किसी शहर में, ये एक पॉश इलाका है बोरिंग रोड, वहां जाइएगा, देखिए बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है। शायद होर्डिंग आपको किसी दूसरे चीज का मिलेगा, कोचिंग का ही मिलेगा, क्योंकि वहां का एक ही रोजगार है, पढ़ाई।
पढ़ना ही बच्चों का एक धर्म है कि पढ़ ही के कुछ किया जा सकता है, पढ़ाई ही के बदौलत। इसलिए पढ़ने का स्कोप है, पढ़ाने का स्कोप है, कोचिंग भी बहुत है। अब उसमें बड़े बड़े माफिया हैं, वो लोगों ने मुझे धमकी दिया कि यार तुम ये सब बेकार कर रहे हो, पटना कोचिंग एसोसिएशन का मेंबर बन जाओ और जैसे जैसे हम चलाते हो वैसे वैसे चलाओ, तुमको क्या दिक्कत है भाई, क्यों नाटक करते हो, ये सब नेता उता वाला काम कर रहे हो, तुम चलाओ। हमने कहा भैया मैं जैसे चला रहा हूं चलाने दीजिए, आपका पैटर्न दूसरा, मेरा पैटर्न। हमारे पास तो अमीर बच्चे भी नहीं आते आईआईटी के लिए, हम तो भाई गरीब बच्चों को लेकर आपकी दिक्कत। अरे यार तुम इतना नाम कमा लिया, पैसा कमा लो भाई, क्या दिक्कत है, पैसे कमा लो। हम कि नहीं नहीं भैया पैसा नहीं कमाना। 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद एक माफिया का फोन आया, बोला मैं फल्ला फल्ला बोल रहा हूं पटना जेल से, बेउर जेल से। हमने सोचा वो लगता है कोई बच्चा है आया होगा कि मेरा एडमिशन ले लीजिए, तो मैं नहीं लिया होगा, तो इसीलिए मुझे धमकी दे रहा। बोला कि हमने कहा, बोला कि पहचान रहे हो मैं फल्ला फल्ला आदमी बोल रहा हूँ, क्या बेटा तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है, तुम मुझे डरा रहे हो, मैं अभी तुम्हारे पिताजी को कंप्लेन करता हूँ। बोला कि नहीं पहचान रहे हो मुझे। हम कि भाई मैं तो नाम सुना हूं, तुम मुझे शायद नहीं पता। तब मुझे लगा कि हो सके हो क्रिमिनल, हम कि हो सके हो भाई, तुम चलाओ पटना कोचिंग एसोसिएशन, ये सब बोलने लगा। तब हम कहे भाई तुम हो, मैं तुम्हें जानता हूं, पढ़ता हूं, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, चाहे कुछ भी तुम कर लो, मैं अपना मिशन बंद नहीं करूंगा। रख दिया, गाली गलौज किया, रख दिया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर ही मैंने पुलिस को दिया मोबाइल नंबर कि देखिए ये नंबर आया है भाई, ये सही में ऐसा क्रिमिनल है। वो कहा कि सही में आप घर से मत निकलिए। हम भैया हम घर से काहे नहीं निकलेंगे, हम क्या गलत काम किया है कि घर से नहीं निकलेंगे, मुंह छिपा के रखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। घर से निकला, लेकिन निकलना खतरनाक पड़ा मेरे दोस्तों। 3 बार हम पर हमले हुए, कातिलाना हमले बम और गोलियों से। एक बार तो इतना जबरदस्त हमला था कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ मुझे बचाने के लिए आया, उसके पेट में चाकू पूरा घुसेड़ दिया अपराधियों ने और उतना बड़ा घाव कर दिया, चीर दिया पेट को, वहीं पर गिर गया। उसके बाद हम लोग मोहल्ले में भीड़ लगी, गोली फायर करते हुए क्रिमिनल्स भागे, सब लोग उठा के फिर हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज में ले गए। वो आईसीयू में भर्ती था, वहां पर जिंदगी मौत से लड़ रहा था। हमारे परिवार ने, हमारे दोस्तों ने, मित्रों ने, रिश्तेदारों ने, हमारे शुभचिंतकों ने कहा छोड़ दो, बंद कर दो सुपर 30, बेकार है। मैं भी सोच में पड़ गया, क्या करूं ना करूं, बेकार है। मैं भी स्ट्रगल करने लगा, क्यों भाई चला रहा हूं, नहीं सर। हम लोगों ने भी आंदोलन छेड़ दिया, क्या जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना अभियान को बंद नहीं करूंगा। हमने कहा कि हम पर हमला क्यों होता है बार बार, मैंने भी आवाज उठाई। तब जाके गवर्नमेंट ने मुझे 2 अंगरक्षक दिए, 2 अंगरक्षक दे दिया कि भाई आपको बचाएगा, गोली उली चलेगा तो आपका जान बचाएगा। हम के ठीक है भाई, बचाएगा जान। तो संजोग से अंगरक्षक अच्छा था, बोला, हम बोले कहाँ भाई तुम्हारे रहने होने का कहाँ व्यवस्था करें। भाई बच्चा जा रहा था, उसी के नीचे कमरा में हम लोग रह जाएंगे, आप चिंता न करें। अच्छे लोग थे, हमें ठीक है, रह गया कि हमारे यहाँ अच्छे ही लोग आए, लेकिन मेरा भी बेटा बड़ा होगा तो पढ़ा दीजिए। हम के ठीक, शर्त हो गया। रहने लगा ये बेचारा, रहने लगा, चलने लगा, सुरक्षा हो गई मेरे दोस्तों। लेकिन नई मुसीबत आ गई। कभी भी मैं पानी पूरी खाने जाता हूं पत्नी के साथ, तो ये दोनों खड़े रहते हैं, हमारे पास कोई बड़ी गाड़ी तो नहीं है। अब बड़ा धर्म संकट, इनको पानी पूरी खिलाए कि हम ही दोनों खाए। पानी पूरी वाला भी बेचारा बोलता है जाओ खाओ मत, पैसे दो। सोचता है कोई बड़ा अपराधी होगा, चाहे हो सके कोई बड़ा थानेदार होगा, कुछ होगा। कहा कि नहीं पैसा चाहिए, नहीं। हम के ले लो भाई, 10-20 जो भी हुआ तुम ले लो। ये हालात। वाइफ कहती है कि क्या भाई शादी करके फंस गए, चलिए कभी कभी सिनेमा में भी दिखा दीजिए भाई। अरे चलो फिल्म देखने गए, फिल्म देखने का नहीं सर हम भी चलेंगे, कुछ कर दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी कोई। अब फिल्म का इसका भी टिकट खरीदना पड़ता है, ये भी बगल में आके बैठ जाता है। तो ये सब भी जिंदगी का रस है, प्लस माइनस चलते रहता है जीवन में। लेकिन हमले बंद हो गए। लेकिन नकली सुपर 30 फिर खोला, सुपर 100, सुपर 20, गया सुपर 30, मगध सुपर 30, नालंदा सुपर 30। नालंदा छोटा लिखा, सुपर 30 बड़ा लिख दिया। लोगों से आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे दोस्तों, लाखों में नहीं करोड़ों करोड़ में कई लोगों ने चंदा उठाया। बाद में जब भेद खुला तब पता चला, तब तक काफी देर हो गई। बहुत लोगों ने पूछा कि आप पर इतने गुंडे लगे हुए रहते हैं, आपके लोग बदनाम करना चाहते हैं, तरह तरह का अफवाह उड़ाते हैं, धमकी देते, क्यों आप सुपर 30 चलाते हैं? आप एक छोटा सा 1 मिनट का
से भी कम का वीडियो आप देखिए। और हम सुमरसा राज के रहने वाले हैं और यहाँ पे पटना में बहुत अच्छी तैयारियाँ की जाती है। सुपर 30 के जो आनंद सर डायरेक्टर हैं, गरीब से गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। यानी कि सुपर 30 में एग्ज़ाम लेने के बाद यहाँ 23 से विद्यार्थी को जो गरीब से गरीब हैं उन बच्चों को पढ़ाई IIT का नॉलेज दिया जाता है। सर का तो बहुत अच्छा सुपर 30 है। सुपर 30 की वजह से ये सारे गरीब बच्चे आप सोच सकते हैं कि हाँ हम इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वरना इतना फीस लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। वैसे भी मेरे पापा तो पान की दुकान करते हैं, इसलिए हम तो एबल नहीं थे कि हम कुछ कर पाएँ, लेकिन सर के बारे में सुने तो लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं। तो बहुत उनको बहुत कम पेमेंट है उनका, तब भी यहाँ पे आके आनंद सर के कारण मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम मेहर अंसारी है। मेरे पापा एक फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं। जैसे कि मेरी आर्थिक कंडीशन अच्छा नहीं है तो कभी हम सोचते थे, मेरा बचपन से बहुत मन था बहुत पढ़ने का, लेकिन हम बस अपने परिवार की वजह से सोचते कि मेरे परिवार मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जब से आनंद सर के बारे में सुना तुरंत हम वापस आ गए, अच्छे से पढ़ते हैं। अब हम मेरे मन में भी अब हौसला हो गया कि अब हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम आयुष दास है। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, जिससे मुझे नहीं लगता था कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन पाऊँगा, लेकिन जब से मैं आनंद ऐसे ऐसे बच्चे हमारे साथ हैं। और ये बच्चे जिस दिन मुन्ना घायल था और हॉस्पिटल में उस पर हमला हुआ था, वहाँ पर एडमिट था, तो डॉक्टर ने बोला था कि भाई ब्लड चाहिए मुझे, इमीडिएटली इसका ऑपरेशन करना है। इस तरह के 300 बच्चों ने अपना हाथ फैलाया, कहा कि मेरा पहले ब्लड टेस्ट करिए सर। तो मैं कैसे सुपर 30 बंद कर दूं, जब मेरा इतना लोग मानते हैं, प्यार करते हैं, तो मैं कैसे बंद कर दूं। चल रहा है अभियान, लेकिन खुशियां भी आई। ठीक है ठीक है। तो 2-4 मिनट में बातों को खत्म करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि खुशियां भी आई। ऐसी बात नहीं कि जीवन में खुशियां नहीं आई, खुशियां भी आई। पहला साल जब हमने सोचा था कि 5 बच्चे भी IIT कर गए तो बहुत बड़ी बात, लेकिन पहले ही साल 18 बच्चे 30 में क्वालिफाई किए, फिर 22 क्वालिफाई किए, फिर 26, 28 और पिछले 12 सालों में 3 साल ऐसा हुआ कि 30 के 30 बच्चे IIT चले गए। अभी तक 330 बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दिया, जिसमें 281 बच्चे IIT गए और बाकी कोई ना कोई अच्छे NIT में जरूर गए हैं। बहुत सारे अवार्ड मिला, बहुत सारे लोगों ने सम्मान दिया। ऐसी बात नहीं कि जिंदगी में केवल दुखी है, सुख का भी मजा बहुत मिलते रहता है। बहुत लोगों ने बुलाया अच्छा कार्यक्रम में। जेम्स कैमरॉन साहब के साथ भी एक बार, जो टाइटैनिक फिल्म बनाए, उनके साथ भी एक प्रोग्राम में हम लोग साथ थे, बोलने का मौका मिला एक ही मंच पर हम लोग। बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं, लोकप्रियता भी बढ़ी, जागरूकता भी बढ़ी। बिहार, यूपी, झारखंड जैसे जगहों पर जहां गरीबों में एकदम आशा खत्म हो चुकी थी, युवाओं निराश हो चुके, उनमें भी आशा आई। जो अमीर घर का बच्चा था वो सोचा कि इतना गरीब इतने अभाव में जब कर सकता है कुछ, तो मैं भी कुछ कर सकता हूं। और गरीब भी सोचा, एक ड्राइवर था, अपने साहब की खिदमतदारी करता था जिंदगी भर, इस उम्मीद में कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, साहब ड्राइवर बना देंगे। अब वो भी सोचता है सुपर 30 के सफलता को देखकर कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरे एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा है वो भी बिक जाए, लेकिन मैं भी अपने बेटा को पढ़ाऊंगा और इस साहब से भी बड़ा साहब बनाऊंगा। ये लोगों में पॉजिटिव सोच लाया है। पहले लोग चाहते थे कि भाई नेता लोग जाता था, इलेक्शन का टाइम में नेता जाते थे, कहता था मालिक दे दा, मालिक रोजगार दे दा, हमारा बेटा के नौकरी लगा दा। अब विरोध होता है नेताओं का। बिहार में जाते हैं, पूछते हैं स्कूल में क्यों नहीं आ रहे हैं शिक्षक, क्यों दरवाजा चोरी हो रही है, क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है। यही सुपर 30 के जागरूकता का बिहार जैसे जगहों पर परिणाम है। मैं गांव-गांव, देहात, शहर छोटे छोटे बिहार में जाते रहता हूं, घूमते रहता हूं, वहां पर प्रोग्राम देते रहता हूं, युवाओं को जगाते रहता हूं, उनके अधिकारों के बातें में बताता हूं, उनमें विश्वास जगाता हूं, और लोग मिलते हैं, अच्छी भीड़ लगती है, लोग सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है। बड़ा बड़ा नेता डरता है हमसे, सोचता है कि अगर इलेक्शन में खड़ा हो गया तो मेरा क्या होगा। लोकसभा के टिकट के बंटवारे तक बहुत वहां चर्चा थी, लोग आपस में करते थे, कोई अखबार वाला भी लिख देता था फलना पार्टी से लड़ जा सकते, जबकि मुझे दूर दूर तक पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप शिक्षक हैं तो एक राजनेता से ज्यादा आप परिवर्तन कर सकते हैं अगर अपना धर्म अच्छा से निभाते हैं तब। इस बात को मैंने देखा है और महसूस किया है, इसलिए मुझे शिक्षक ही रहने दे और आगे बढ़ने दे, काम करते रहने दे।
और सक्सेस मंत्र क्या है मैं ये भी बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों चलते चलते कि भाई मैंने 2 कार्टून बनाए, कैरेक्टर बनाए। होता क्या है कि जो बच्चे अंडर प्रिविलेज होते हैं, जो गरीब घर से आते हैं, उनमें हौसला की कमी होती है, उनमें विश्वास जगाना, टैलेंट सब में है। मैं मानता हूँ हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, गरीब में, अमीर में, सब में टैलेंट है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी किसको मिलता है, किसको कॉन्फिडेंस किसको जगा है, ये महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्तों एक मैंने रिक्की का बनाया कार्टून बनाया, एक कैरेक्टर तैयार किया जिसको सूटेड बूटेड इंग्लिश बोलने वाला दिखाया, एक भोलू का दिखाया जो बेचारा देहाती परिवेश से आया है, ग्रामीण परिवेश से आया है, टूटा फूटा पहने हिंदी बोलने वाला। इसको मैंने बाइक से चलते दिखाया, इसको मैंने साइकिल से चलते दिखाया, इसको हॉट डॉग, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खाते दिखाता हूँ, इसको कॉर्न, दाल भात सब्जी। ये पूरी कहानी में ही है। मेरा जितना भी लेक्चर है सब मल्टीमीडिया में बना हुआ इसी तरह से, और सैकड़ों लेक्चर है, सैकड़ों कहानी है। तो ऐसे तरह से हाय हेलो ये प्रणाम करता। जब भी कोई एक IIT का या कहीं का एक सवाल स्क्रीन पर आता है तो बच्चों को मैं सॉल्व करने के लिए देता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि देखो इस सवाल को सबसे पहले जो बनाया वो रिक्की बनाया, जो अमीर घर का बच्चा था वही बनाया, और बना गया और फिर चैलेंज किया, ललकारा भोलू करे तुम तो गरीब घर से हो, तुम तो मामूली स्कूल से पढ़े हो, तुम तो मामूली झोपड़पट्टी में अभी पढ़ रहे हो, तुम क्या करोगे, तुम में क्या है, तुम्हारी क्या औकात है। तब भोलू कहता है मुझे मत ललकारो, मैं आनंद कुमार का चेला हूं, मैं उनका शिष्य हूं, मुझे मत ललकारो। जिस सवाल को तुम एक तरीका से बनाया उसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से बना सकता हूं। जिस सवाल को तूने अलजेब्रा से बनाया मैं उसे कोऑर्डिनेट से बना सकता हूं, जिसे तूने कोऑर्डिनेट से बनाया मैं उसे कैलकुलस से बना सकता हूं, मैं उसे 5वें तरीके से बना सकता हूं, मैं उसे जनरलाइज कर सकता हूं। बता तू हीरो है या मैं हीरो हूं। ऐसे तो मैथमेटिक्स का नॉलेज तो बढ़ता ही है, साथ साथ उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है, सोशल इम्पैक्ट है। अनूप की बात बताए, गांव जाता है बेचारा, पढ़ाते रहता है लोगों को, और चलते चलते मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। मुझे जानकारी मिली पत्रकारों द्वारा, अखबार में उनके बारे में चर्चा हुई, और उसे पढ़ के मुझे बेहद खुशी हुई कि विदेश के कुछ पत्रकार, खासतौर से कनाडा के, उन्होंने आनंद कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत किया है, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसको एक एग्जाम्पल बनाया है उन्होंने, और देश विदेश में उसकी बड़ी चर्चा की है उस माध्यम से। आनंद कुमार जी के बारे में जब मैंने पढ़ा सुपर 30 के बारे में, तो पता चला कि ये वही कर रहे हैं जो डॉक्टर प्रभाकर आनंद, जो कि मेरा किरदार इस फिल्म में करता है। पता नहीं आनंद कुमार जी की परिस्थितियाँ क्या थी, किस वजह से उन्होंने किया, लेकिन आरक्षण फिल्म में जो परिस्थिति बनती है वो तकरीबन वैसी ही है जैसे आनंद कुमार जी की, जहाँ पर वो ऐसे बच्चे जो कि जिनके पास सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, उनको एकत्र करके निःशुल्क शिक्षा प्राप्ति का एक मार्गदर्शन दिखाते हैं, और किस तरह से वो उन बच्चों को चुनौती देते हैं जो कि जिनके पास साधन है, सुविधा है, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त। आरक्षण फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी तो इस कॉन्सेप्ट के लिए प्रकाश झा जो डायरेक्टर थे फिल्म के, हमसे डिस्कस किया, और 2 बार बॉम्बे भी बुलाया था फिल्म के डायरेक्शन के लिए। अमिताभ बच्चन कैसे एक टीचर का एक्टिंग करेंगे, कैसा आपका परिवेश, ये सब समझने के लिए 2 बार मैं गया था। और अमिताभ बच्चन भी जब भी जहाँ गए प्रमोशन के लिए हमारी बात बोले, हमारी बड़ाई की, मैं भी इनसे बहुत प्रभावित है, बहुत अच्छे इंसान है अमिताभ बच्चन जी। इसके बाद कई लोग आए, बहुत लंबी लिस्ट है, अपनी बड़ाई में अपने क्या कहूँ, चाहे डिस्कवरी रहे, अल जजीरा रहे, सब देश विदेश में कई चैनल ने बच्चों पर फोकस करके प्रोग्राम बनाए, कैसे बच्चे कहाँ से कहाँ आ गए। और एक कभी अनुराग बसु भी हमारे घर आए हुए थे, वो भी एक ऐसी फिल्म की कल्पना कर रहे हैं जिसमें सुपर 30 का कुछ कैरेक्टर हो, तो उस पर फिल्म बनाने की बातचीत चल रही है। मैं लास्ट में ये आपको बताते हुए अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा कि मन में पूरी बात बताने के लिए मैं जो आया था, पहली बात कि मन में भरोसा रखिए। सफलता के लिए 4 चीज़ों का जरूरी है। अपने आप युवा हैं, आप चाहते हैं सफल हों, तो 4 चीज़ों को रखें। पहली जो सबसे जरूरी बात होती है सफलता के लिए, वो बात होती है कि आप में प्रबल प्यास हो। कहीं भी जाते हैं, कुछ भी सोचते हैं, आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो प्रबल प्यास। अभी जितने हमारे 5 स्पीकर थे, आप उनमें देखा होगा कि प्रबल प्यास है, बेचैनी है कि नहीं भाई उस टारगेट को हमें पूरा करता है। दूसरा है सकारात्मक सोच।
अभी आपने कई लेक्चर में देखा थिंकिंग पॉजिटिव थी, कई बार लगता था मुझसे नहीं होगा, अब नहीं कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकती हूं मैं, फिर भी थिंकिंग पॉजिटिव था। तो सकारात्मक सोच रखे। तीसरी बात में जो सबसे जरूरी है, अथक परिश्रम। परिश्रम के बगैर कुछ नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूं आज के तारीख में पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते, पढ़ बेटा पढ़ बेटी, मन लगा, थोड़ा मेहनत कर, जीवन में आगे बढ़। हमें अपने बच्चों को डांटना पड़ता है, थोड़ा कम पढ़, दिमाग दर्द कर जाएगा, परेशानी में पड़ जाओगे। लेकिन सुपर 30 के बच्चे इतना अधिक मेहनत करते, इतना अधिक मेहनत करते, कई बार कई की आंख दर्द करने लगते हैं, कई का सर दर्द करता है, बोलता है 16 घंटे 17 घंटे 15 घंटे से तो कम कोई नहीं मेहनत करता है। जब भी मैं बोलता हूँ रुक जाओ, जाओ 10 रुपया लो, चाय पी के घूम के आओ सड़क पर से, सब यही बोलता है कि नहीं सर आपने हमारे लिए इतना किया है, आपने मेरे में एक सपना दिखाया, सपना जगाया, मैं आपके सपने के लिए मेहनत करूंगा, चाहे जितना मेहनत करना हो। इसलिए अथक प्रयास का बड़ा है। और लास्ट में चलते चलते धैर्य। कोई कहानी आप ले लीजिए, आज 5 स्पीकर, मैंने तो 2 को सुना, 3 को नहीं सुना। ये बात जानिए कि सब में एक प्रबल प्यास थी, सब में पॉजिटिव थिंकिंग थी, सब ने हार्ड लेबर किया और सब में पेशेंस था। अभी पिछली कहानी जो बच्ची बताई चढ़ाई करने वाली, उसमें देखिए धैर्य की बात, धैर्य चाहिए। बहुत बार आपको लगेगा कि एकदम अंधेरा है लाइफ में, अब नहीं कुछ होगा, बच्चा बोलता है कि अब नहीं समझेंगे सर, लगता है छोड़ दे, घर भाग जाए, गांव भाग जाए, कोई कोई गांव भाग भी जाता है, फिर मेरा भाई जाता है उसको समझा बुझा के लाता है। तो ऐसी स्थिति होते है, उसमें विश्वास दिखाना पड़ता है, पुरानी स्टोरी बतानी पड़ती है, पुराने बच्चों से उसको बात करवाना होता है फोन से, तब उसमें विश्वास रखता है। और जितनी रात गहरी हो, जितना अंधेरा हो, समझो मेरे दोस्तों सवेरा उतना ही नजदीक है। इन चारों बातों को अगर आप रखेंगे तो सफलता मिलेगी। यही 4 बात हम भी बच्चों को बताते हैं और बताते हैं कि तुम मेहनत करो, ये सब बातों को फॉलो करो, इंजीनियर बनोगे। तुम इंजीनियर बनो या ना बनो कोई मायने नहीं रखता है मेरे दोस्तों, एक अच्छा इंसान बनो, इसका जरूर प्रयास करो। हमारे चलते किसी को दुख ना हो, मैं किसी को कष्ट न दूं, इसका प्रयास करो। और मैं तो ना किसी से चंदा लेता हूं, ना कोई मदद लेता हूं, लेकिन इतना युवा साथी है, आपके पास अच्छा अच्छा आइडिया है, विचार है, मैं इस प्रोग्राम का एक्सटेंशन करना चाहता हूं, आप लोग का सहयोग लेना चाहता हूं। मैंने अभी पिछले 3-4 महीनों से एक अपने वेबसाइट पर super30.org पर एक फेसबुक का लिंक क्रिएट किया है, super30.org पर, वहां जाके हमसे जुड़े और जरूरत होगी तो हम आप लोगों के एज ए वॉलंटियर गुजरात में या कहीं भी काम करने की जरूरत हुई तो आप लोगों से जरूर मदद लेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मुझसे जुड़ेंगे। जब ऑर्गेनाइजर ने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने हाँ बोल दिया। अभी 5-7 दिन पहले जो ऑर्गेनाइजर बैठे होंगे उनको जानकारी होगी, लोगों ने बताया कि हमारी तबीयत खराब। दरअसल में क्या हुआ हम बताना भी नहीं चाह रहे थे, आज तक सार्वजनिक नहीं बताना चाह रहे थे और मैं भी नहीं चाहूँगा प्रेस मीडिया को इस बात को सार्वजनिक करे, लेकिन सच्चाई है कि काफ़ी सर दर्द किया, थोड़ा कान से भी सुनाई कम देने लगा। तो पटना में इलाज करवाते करवाते मैं दिल्ली गया तो लोगों ने बताया कि आपके ब्रेन में छोटा ही ट्यूमर है, लेकिन बहुत छोटा, इसको अभी रिस्क से अंदर का है, अब इसे ऑपरेट करके हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो अब समझिए कि कोई के ब्रेन में ट्यूमर की बात आएगी, वो घबरा के ऐसे ही आधा हो जाएगा। तो हमारे में भी थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन फिर हमें लगा कि मैं बच्चों को सिखाता हूँ, इतना हौसला वाली बात। मैंने जीवन में इतने कठिन परिस्थिति देखी है, तब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर भी बोला अरे चिंता नहीं करिए, 2-4 वीक में सब आप ठीक कर देंगे, ऑपरेट वगैरह कर देंगे, आप चिंता न करें। तब मैंने सोचा कि तो डॉक्टर बोले कि भाई आप जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू करिए। तो हमने कहा कि भाई बॉम्बे में इलाज इसका बढ़िया है, हमके ठीक है। तब के नहीं, पहले जब सूरत में युवाओं को मैं वचन दे दिया हूं तो मैं जरूर आऊंगा, और तब कल मैं जा रहा हूं बॉम्बे अपने इलाज के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि सबसे बड़ी बात होती है मेरे दोस्तों मन में विश्वास। इसलिए मन में विश्वास रखिएगा तो जरूर जीवन में अच्छा होगा, उम्मीद रखिएगा तो जरूर अच्छा होगा। और चलते चलते सुन ले, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है मेरे दोस्तों। भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है। कभी निराश न हो, कभी मायूस न हो, मेहनत कर, तुम्हारी और तुम्हारे चलते भारत की तकदीर जरूर बदल सकती है। जय भारत, जय हिंद। आनंद भाई, मैं आई एम स्पीचलेस, निशब्द, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए, कहने के लिए। और मैं मनहर काकड़िया जी से, मनहर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्लीज
फूलों से और एक मोमेंटो से आनंद भाई का स्वागत करें। जैसे मैंने आपसे पहले बताया था, उनकी सादगी और उनके तेवर दोनों आपने देखे होंगे। तहजीब कार की और मिजाज जीप का। मैं वॉलंटियर से कहूंगा बहुत जल्दी से 2-3 चेयर्स लगा दीजिए। हम वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम, तो हम सिंपल सिर्फ एक एक क्वेश्चन लेंगे। जो अरुणिमा जी और मेजर जनरल साहब, आप दोनों जल्दी से स्टेज पे आ जाएं। उसके बाद हम कश्यप भाई हमारे चेयरमैन हैं इस सेशन के। कश्यप भाई प्लीज आ जाइए। बहुत सारी बातें मेरे मन में थी एजुकेशन के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, पैट्रियोटिज्म के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने तैयार की थी कि आप लोगों से बातें होंगी, लेकिन बड़ा ही वक्त के हाथों हम मजबूर हैं और कोई और प्रोग्राम भी इस हॉल में है। तो मैं जल्दी से सिर्फ एक क्वेश्चन मैं यहां पे पूछूंगा और मैं चाहूंगा आप सभी उसी पे अपनी अपनी रिएक्शन दे दें। बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते थे। आनंद भाई से एजुकेशन फील्ड में बात करनी थी, मेजर जनरल साहब से देशभक्ति के बारे में, डिफेंस सर्विसेज में पोस्ट वैकेंट्स हैं, लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी थी। अरुणिमा से स्पोर्ट्स का स्कूल में क्या बैलेंस होना चाहिए एजुकेशन के साथ में। चलिए उन सबको छोड़ देते हैं, बहुत सारे मेजर चीज़ें तो इनके लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। यहाँ पे जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूँ वो ये है कि आनंद भाई स्वयं एक हिंदी भाषी प्रदेश से हैं, अरुणिमा जी हिंदी भाषी प्रदेश से हैं और मेजर जनरल साहब भी हिंदी भाषी प्रदेश से हैं। इंग्लिश हमारे लिए एक विदेशी भाषा है। किसी भी भाषा का सीखना गलत नहीं है। वी मस्ट लर्न एज मच लैंग्वेजेस एज वी कैन एंड वी मस्ट यूज इट ऑल्सो व्हेन इट इज रियली रिक्वायर्ड। बट व्हेन आई नो हिंदी, यू नो हिंदी, व्हाट फॉर वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। ये जो हाइप, ये जो ट्रेंड हमारी युवा पीढ़ी में चल रहा है, मैं देखता हूं हमारे सिने स्टार्स जिनकी रोजी रोटी हिंदी फिल्मों से चलती है, अवार्ड फंक्शन की स्टेज पे आते ही उनको क्या अवतार आता है। एक्चुअली माय केमिस्ट्री विद द करीना हैज वर्कड आउट वेरी वेल इन दिस मूवी एंड इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। अरे भाई आप बात क्या कर रहे हैं? आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? तो मैं बहुत बहुत सलाम करता हूं तीनों वक्ताओं को जिन्होंने अपना वक्तव्य हिंदी में रखा। और मैं इसी विषय पे तीनों वक्ताओं से और अंत में क्लोजिंग रिमार्क कश्यप साहब से ये चाहूंगा कि ये जो युवाओं में इंग्लिश बोलने का एक छद्म आधुनिकता का, सूडो मॉडर्निटी का जो ट्रेंड चल रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कॉर्डलेस। आज जिस तरह से पूरी दुनिया सिमट के गांव की तरह हो गई है, इसलिए इंग्लिश का जानना काफ़ी ज़रूरी है। मैं ऐसा मानता हूँ। हम लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो पढ़ाई जो होती है इंग्लिश मीडियम में होती है। बोलना, बातचीत करना, सब्जेक्ट को समझाना हिंदी में होता है, लेकिन बातचीत भले हिंदी में हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश सीखें और किसी से पीछे न रहें। जैसा कि अभी मेजर साहब ने कहा, इंग्लिश जरूर सीखिए, अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं हम लोग बोल पाते हैं, इंग्लिश नहीं कर पाते, तो उसके लिए फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होना चाहिए। अपने स्वाभिमान को उसके लिए नीचा नहीं करना चाहिए। इसका मैं 2 लाइन का एक एग्जाम्पल दूंगा। BBC चैनल एक फिल्म बना रहा था इंग्लिश पर और शिक्षा पर। इंडिया आई हुई थी उसकी टीम। मुझसे फ़ोन किया गया कि भाई आपका कोई IIT दिल्ली में है बच्चा जो कि मुझसे बात कर सके, कुछ अपना व्यू दे सके, क्योंकि आपके बच्चे तो निर्धन परिवार से आते हैं। तो मैंने सुरेश का एड्रेस दिया कि भाई सुरेश अभी IIT में है, पढ़ रहा है 3rd ईयर में, आप बात कर सकते हैं। उसके पिताजी ईंट भट्ठे में मजदूरी करते थे, माँ गरीबी के चलते गुजर गई थी, आप बात कर दीजिए। गया, देखा वो लोग कि सुरेश एकदम साधारण कपड़ा पहने हुए, स्लीपर जैसा हवाई चप्पल टूटा फूटा पहने हुए है। उसका वेशभूषा भी बड़ा स्मार्ट जैसा नहीं। जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू जब चलने लगा, उसका तो इंग्लिश भी बड़ा मुश्किल से बोल रहा है। तो सवाल पूछा BBC के रिपोर्टर ने कि अच्छा सुरेश, तुम इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते हो, IIT में पढ़ते हो जहां सभी बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, सभी बच्चे अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाते पीते, तुमको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, तुम में कॉम्प्लेक्स नहीं क्रिएट होता है? सुरेश बोला कि अच्छा सर ये बताइए,
ये जरूर है कि मैं ऐसी स्थिति में हूं, लेकिन जो बच्चे अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अमीर हैं, पूरा पैसा खर्चा करते, इंग्लिश बोलते हैं, उनको कैसा, उनको कॉम्प्लेक्स होगा या हमको, जब क्लास में बावजूद इसके मैं फर्स्ट आता हूं। आप समझ गए होंगे। अरुणा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी इस विषय में, जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है युवाओं में? बिल्कुल। एक्चुअली सबसे बड़ी मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि हिंदी मुझे बहुत अच्छी से आती है और इंग्लिश मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। लोगों को ये लगता, लोगों को भले लगता हो ये चीज़ें कि या फिर जैसे साउथ वाले एरिया में जैसे हम जाते हैं तो कुछ कुछ लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, या फिर समझ में आती या नहीं समझ, ऐसा करते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा। कई कई जगह भी मुझे भी ऐसा लगा कि मैं पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ उनसे। लेकिन सच बताएं, जो हिंदी में जो हमारे क्षेत्र मतलब क्षेत्रीय लैंग्वेज या फिर जो हमारी राष्ट्रभाषा, उससे जितना अच्छा कनेक्ट हम लगता था कि ऐसे हो पाएंगे, फिर मैंने अपने आप में खुद से एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया, खुद से सोचा मुझे हिंदी आती है इसलिए मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ। आपको हिंदी समझ में नहीं आती, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं हिंदी अच्छे से बोल सकती हूँ इसलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। और हिंदी क्यों ना बोले, अगर घर से देखें, अगर घर में देखें तो वो हमारा, वही हमारी मातृभाषा है, उसको हम आगे क्यों ना लेके जाएं। और इंग्लिश सीखना जरूरी है। और अगर कोई इंग्लिश मैन सामने आया तो उससे बोलना, लेकिन अपने परिवार घर में नहीं, कि घर में सामने की अगला बच्चा समझ ही ना पाए कि आप क्या बोल रहे, तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे हम उससे। तो जिस तरीके का सिचुएशन हो उस हिसाब से हिंदी इंग्लिश यूज करना चाहिए। समझ अपने उसको समझा, अपनी बात को पूरी, अपना जो मैसेज देना चाहते वो उस तक पहुंच पाए। थैंक यू। दोस्तों, जब मैं आनंद भाई के ऊपर रिसर्च कर रहा था ये मूवी बनाने के लिए, तो मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे कि वो बहुत सारे कंट्रीज में गए हैं, उनमें जापान भी गए हैं। और अगर आप जानते हो तो जापान में वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते। तो हिज कोर कंपिटेंस इज हिज मैथ, हर कोर कंपिटेंस इज माउंटेनियरिंग, हिज कोर कंपिटेंस इज डिफेंस, डिसिप्लिन। लैंग्वेज इज जस्ट ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. योर कोर कंपिटेंस मस्ट बी विद यू. You must be master of something. And language, you can hire hundreds of interpreters, translators. So that is my view. I would like to request Major General Saab on the same issue. What do you say? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से अब तक छात्र हूँ। एक चीज़ जो नहीं बताई थी आपको, जो छुपा रखी थी, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, कि मैं 8वीं क्लास से एंटरप्रेन्योर भी हूँ। और 8वीं क्लास में जब मैं था तो मैंने पहला कॉन्ट्रैक्ट लिया था केटरिंग का। और उसके बाद मैंने ट्रांसपोर्ट किया, उसके बाद मैंने गारमेंट एक्सपोर्ट किया, उसके बाद मैंने रियल एस्टेट किया, और लास्ट में मैंने ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया। और इतने देशों से बातचीत हुई, इतने मतलब प्रदेशों से बातचीत हुई, इतने लोगों से बातचीत हुई। और जो आने वाला समय, मेरा हमेशा फोकस रहता है आने वाले समय के ऊपर, और मेरा फोकस रहता है कि आने वाले समय के अंदर एंटरप्रेन्योर या मेरा भारत का आदमी कोई भी कैसे अपना काम अच्छा चला पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर तीनों भाषाओं में कंपटीशन होगा, अंग्रेजी, चाइनीज, मैंड्रिन और हिंदी। अब जो अपनी मातृभाषा को मानेगा और चलाएगा, वही विश्व के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा कर पाएगा। और इस चीज़ को मानते हुए मैं मानता हूं कि जिस तरह हर प्रदेश के अंदर अपनी मातृभाषा के ऊपर जोर रहता है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि पूरे विश्व के ऊपर हमारा जो हिंदी का और अपने देश का, भारत का जो इन्फ्लुएंस है, उसको कर सकें, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंडिया को हम बनाने में अपना योगदान दे सकें। Okay, now I would request Kashyap Mehta Saab. He is chairman of Sarvajanik Education Trust, which is more than 100-year-old, to have his concluding remark. हेलो, यह सवाल अपनी जगह पे बहुत सही है। इंग्लिश शुड बी लर्नड एज अ सब्जेक्ट। जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ इंग्लिश का इस्तेमाल हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दो गुजराती मिलते हैं, दो हिंदी भाषी मिलते हैं, और वो इंग्लिश में बात करे, वो बिल्कुल सही नहीं लगता। मैं ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन एक जोक मुझे याद आया, वो आपको बताना चाहूँगा। आप सबको मालूम है कि सूरत के आसपास से बहुत सारे पटेल्स यूएसए में सेटल है और मोटल के बिज़नेस में बहुत बड़ा नाम कमाया है।
ऐसा एक पटेल बहुत सालों के बाद बहुत पैसा कमा के वापस आता है साउथ गुजरात में, बहुत सारे पैसे डोनेट करता है, तो उनका बड़ा नाम हो जाता है। थोड़े दिनों में उसको वापस जाने का समय आ जाता है, तो तब तक वो फेमस हो चुका होता है, तो सारे जर्नलिस्ट उसके आगे पीछे जाते हैं। तो उसमें से एक जर्नलिस्ट ने पूछा, मिस्टर पटेल, यू मस्ट हैव हैड प्रॉब्लम्स व्हेन यू वेंट टू यूएसए बिकॉज यू डिड नॉट नो इंग्लिश। पटेल इतना एंटरप्राइजिंग था, उसने जवाब दिया, आई डिडंट हैव प्रॉब्लम्स, दे हैड प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच कश्यप मेहता जी। और अब मैं अपने जो लास्ट 2 स्पीकर्स थे उनके सिग्नेचर हमारे हॉल ऑफ फेम में रह गए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो काल के कपाल पे अपने हस्ताक्षर दर्ज कर दें, जो कि हमारे लिए आने वाले दिनों में भी प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से एक्स्ट्रा चेयर्स लगा दें, और हमारा पूरा कोरम जो कि सुबह इनॉग्रल सेशन में था, मनहर भाई, दक्षेश भाई, कमलेश भाई, वो सभी मंच पे आ जाएं और हम लोकल अचीवर्स को बहुत जल्दी से फैसिलिटेट करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। उसके बाद राष्ट्रगान और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा। All the distinguished guests are requested to be beyond dais. हर रिक्रूटमेंट रिटायरमेंट से जुड़ा है, हर जन्म मृत्यु से जुड़ा है, हर प्रारंभ अंत से जुड़ा है। उसी तरह आज का हमारा कार्यक्रम भी सुबह इनॉग्रल फंक्शन हुआ और अब क्लोजिंग सेरेमनी। बहुत अच्छा चल रहा है, आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन खत्म होना भी जरूरी है। जो लोग गुजरात से बाहर के जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनसे हमारा वादा था कि उन्हें टू एंड फ्रो ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो बैक स्टेज मिस्टर सागर पापनेजा, उनसे मिलने, जो भी अपने अपने ग्रुप के लीडर्स हैं, और वो अपने प्रोडक्शन ऑफ टिकट पे अपना रिमर्समेंट ले सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दे दूं, हमारे इस कॉन्क्लेव में सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी कुछ छात्र आए हुए हैं। आप सोचेंगे विदेशों से कैसे, मैं सस्पेंस खत्म कर देता हूं। ये लोग ऑलरेडी वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो जो भी फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, आई वुड लाइक टू जस्ट रेज योर हैंड्स और प्लीज स्टैंड अप। ओके, I think 17 were there in the morning. Okay, they might have left. No issues. लोकल अचीवर्स पूजा चौरूसी, जल्दी से आप लोग स्टेज पे आ जाइए। प्रेस वाला जी, जूली, मनीषा प्रेस वाला जी, मालविका मेहता, दोस्तों हम चाहते थे कि लोकल अचीवर्स के बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाए, लेकिन वही वक्त की पाबंदियों के चलते मैं बहुत जल्दी से आपको बता दूं कि जो पूजा चौरूसी हैं वो ट्रायथलॉन एक गेम होता है जिसमें पहले भागना पड़ता है, उसके बाद साइकिल चलानी पड़ती है और फिर तैरना पड़ता है। चलिए, इसका ऑर्डर थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो गया। उन्होंने इसमें बहुत सारे कीर्तिमान बनाए हैं, बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, उनकी लिस्ट एक बहुत लंबी है। और प्रेस वाला मैडम, इन्होंने वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, इसमें बहुत सारे नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं गुजरात में नेशनल लेवल पे। तीसरी जो महिला आपके सामने बैठी हुई हैं, ये कमर्शियल पायलट हैं सिंस 1998 एंड अर्लियर, नो, यू आर फ्रॉम मुंबई, ओके। फोर्थ वन इज मिसिंग आई थिंक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जूली पटेल, प्लीज कम ऑन द डायस इफ यू आर इन द हॉल। जस्मिन पटेल, हरमीत की मदर अर्चना जी, हरमीत पटेल। एंड वी हैव गॉट ए इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर,
table tennis player Harmeet. His mother is there. Archana ji, please come on the dais. और लोकल अचीवर्स को फेलिसिटेट करने से पहले हमारे आज के जो सेशन के सेकंड सेशन के चेयरमैन थे कश्यप मेहता साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनहर भाई से कि वो कश्यप जी का एक फ्लोरल बुके और मोमेंटो देके सम्मान करें। बी क्विक। A huge round of applause, जोरदार तालियां। पूजा चौरसी को मोमेंटो और फ्लोरल बुके देने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दक्षेश ठाकर जी से। मनीषा प्रेसवाला जी को यहां पे एक्नॉलेज करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा खालसा साहब से, मैडम मनीषा प्रेसवाला जी। और जूली पटेल जो कि एयर इंडिया में पायलट हैं, पहले वो बोइंग पे थी और आजकल वो ड्रीम लाइनर पे हैं 787। उनके सम्मान के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कश्यप मेहता जी से। Next, local achiever from Surat is Malvika Mehta. She is settled in Mumbai and she won 2012 Femina Miss India. Pardon? Femina Miss Style Diva 2012. Give her a big round of applause. And I request Manhar Kakadia bhai. हमारे एक और माटी के लाल हरमीत देसाई हमारे बीच में नहीं है क्योंकि वो अपने इंटरनेशनल असाइनमेंट पे हैं, वो कहीं मैच खेलने के लिए गए हुए हैं। उनकी माताजी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा और कमलेश भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका सम्मान करें फ्लोरल बुके और मोमेंटो देके। हेलो, अभी मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। हम सब लोग एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करेंगे। वोट ऑफ थैंक्स। हेलो हेलो। आज की कार्यक्रम के अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के पूरे होने में, इसको इतनी अच्छी तरह से होने में हमारा सहयोग किया है, उनका अगर मैं धन्यवाद ज्ञापन नहीं करूंगा तो एक कृतज्ञता होगी। और मैं ये नहीं चाहता कि इतने सुंदर कार्यक्रम में जो लोग हमारे सहयोगी रहे हैं उनको मैं ऐसे मौके पे भूल जाऊं। हालांकि समय की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी मैं एक तो स्वामी जी का खास तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हमारे साथ उपस्थित रहे। साथ में मनोहर भाई कांकड़िया, प्लीज़
हैव ए बिग अप्लाउज फॉर मनहर भाई काकड़िया, जो कि इस पूरे कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। उनके ही वजह से उन्हीं का विज़न, उन्हीं का कॉन्सेप्ट, उसको हमने सिर्फ कैरी आउट किया है। से मनहर भाई का ये कॉन्सेप्ट था, उन्हीं की इच्छा थी कि कार्यक्रम इस रूप में होना चाहिए। और इसके लिए एक बार मैं फिर आप लोगों से वो करूँगा कि मनहर भाई के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। साथ में उसके बाद में भरत भाई रेशमवाला और रुचिर भाई, वो हमारे साथ में एकदम कंधे से कंधा लगा के रुचिर भाई हमारे साथ में रहे हैं। जितनी मेहनत हमने की है उतनी मेहनत रुचिर भाई ने की है। भरत भाई का हमारे को बैक सपोर्ट रहा है, तो भरत भाई के लिए भी एक बार तालियां, और साथ में रुचिर भाई के लिए। इन सब को कोऑर्डिनेट करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, एक यूनिवर्सिटी दक्षेश भाई का हमारा सहयोग रहा, दूसरी तरफ हमारे गुजरात मित्र रहे, तीसरी तरफ ये गोयनका स्कूल रहा, और इन सब को जो बखूबी कोऑर्डिनेट किया है वो और कोई नहीं, हमारी गीताजी श्रॉफ। गीताजी श्रॉफ का इस सारे कार्यक्रम के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण सहयोग रहा है, इन्होंने इस बखूबी से इसको कोऑर्डिनेट किया इन सारी एजेंसीज के कामों को, उनके लिए भी एक बार ताली होनी चाहिए। फिर ताली होनी चाहिए हमारे बेवरेज पार्टनर सुमूल डेयरी, जिन्होंने 1,75,000 रुपये हमें आप लोगों के अच्छे खाने का प्रबंध करने के लिए दिए हैं। तो जयेश भाई एमडी सुमूल डेयरी, और जिन्होंने फिर साथ में ये और रिक्वेस्ट की कि भले हमारा नाम कहीं नहीं हो, लेकिन इस कॉज के लिए हम आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। 1,75,000 रुपये देके वो हमारे साथ में जुड़े बिना किसी नाम की इच्छा के। एक बार सुमूल डेयरी को भी हम धन्यवाद देते हैं। फिर ये सारा कार्यक्रम किस वजह से हो सका, जरूर इसके लिए एक टीम रही होगी जिस टीम ने इस सारे कार्यक्रम को अंजाम दिया होगा। इस सारे कार्यक्रम की टीम के जो सदस्य हैं, मैं एक बार चाहूँगा कि एक बार मंच पे आए प्लीज। डॉक्टर अपूर देसाई, प्लीज। डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर मनीष जैन, मिस्टर संदीप डांगी, मिस्टर संदीप डांगी, मिस्टर गौरव सिंघवी, गौरव सिंघवी, और ये सबका नाम ले लेके बुलाने वाले डॉक्टर SD शर्मा, डॉक्टर अनिल सरावगी जहां पर कहीं हैं, और लेट मी टेल यू ही इज सुनील जैन, निकेत प्लीज, निकेत शास्त्री, ही वाज आवर मीडिया कोऑर्डिनेटर, वैभव, अनिल सरावगी जी, सागर, सागर पापनेजा, सागर अभी भी काम में लगा हुआ दिखता है ये सुबह से। एंड जय छेरा जी, जो अभी हमारे साथ में नहीं है, वो भी हमारी कोर टीम के मेंबर रहे हैं, और ये जो आवाजें आ रही हैं ये सब उन्हीं के फैन हैं, जय जी के फैन हैं। हाँ। और इन सब के साथ में जैसे गीता जी ने कोऑर्डिनेट किया है सारी एजेंसीज को, वैसे इस कोर टीम को जिसने कोऑर्डिनेट किया है सारी चीजों को हर जगह ध्यान में रखा है, वो और कोई नहीं, हमारे संजय पंजाबी जी। प्लीज ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर संजय पंजाबी। अब आती है बारी, ये है कोर टीम, लेकिन कोर टीम को सपोर्ट किनका है? इनको सपोर्ट है हमारे वॉलंटियर्स का। ये हमारे वॉलंटियर्स के जो नेता हैं, जिनको वॉलंटियर्स को जो ना रुचिर भाई एक बार ऊपर आइए ना, मुझे ख्याल नहीं था। हाँ, फिर आता है ये सारे काम आपने देखा होगा कि ये जो वॉलंटियर्स भाग भाग के कर रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन से लेके सवेरे से लेके शाम तक जो सारा वो किया है, जो आपको व्हाइट शर्ट्स में नजर आ रहे हैं, इनको कोऑर्डिनेट किया है हमारे तुहीन भट्टाचार्य और स्मित देसाई। प्लीज। एक नाम शायद सुनील भाई भूल गए, रुचिर रेशमवाला, ही इज आल्सो ए पार्ट ऑफ आवर टीम। ही इज रुचिर भाई का नाम बोला मैं। इसके बाद आता है हमारी चैम्बर के लोग, जो कि भले आपको यहाँ नजर नहीं आ रहे, लेकिन बिहाइंड द लाइंस, बिहाइंड द कर्टेन जिन्होंने काम किया है, मैं उनका नाम भी यहाँ पर लेना चाहूँगा, जिसमें है हमारे राज जरीवाला, जिन्होंने हमारे जो भी गेस्ट हैं उनकी हॉस्पिटलिटी का पूरा ख्याल रखा है कि उनको कोई कष्ट नहीं हो। साथ में फिर राकेश जैन, के पिपलिया जी, जिन्होंने बैंक्वेट का काम संभाला है, अतुल पाठक जी, मयंक दलाल जी, बकुल टेलर जी, चिंतन पूनावाला, नीनेश जी पज्जीकर, और हो सकता है इनमें कुछ नाम मैं भूल गया हूँ तो कृपया मेरे को क्षमा करें।
उसके बाद में हमारा चैम्बर का स्टाफ, जिसमें पाटिल, देवेश, कीर्तन, विरल, जागृति एंड बहुत सारे लोग जिन्होंने वही बैक स्टेज सारा काम किया है। साथ में हमारे संजीव कुमार ऑडिटोरियम का स्टाफ, सुरेश भाई यहाँ पर ही है, सुरेश भाई और उनका स्टाफ, इनका हमें पूरा सहयोग मिला है। गेटवे होटल जिन्होंने हमें हॉस्पिटलिटी पार्टनर के रूप में सहयोग दिया है। इसके अलावा हमारे कुछ कारपोरेट पार्टिसिपेंट्स थे, ऐसे 14 कारपोरेट पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमें मोरल बूस्ट दिया है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर भेजे हैं। उनको हम व्यक्तिगत रूप से अलग अलग पत्र लिख के धन्यवाद देने वाले हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है। साथ में आईसेक के स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हैं वॉलंटियर्स के रूप में भी, तो उन लोगों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लिस्ट बहुत हो सकती है, और स्केट परफॉर्मर्स जिन्होंने स्किट परफॉर्म की थी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ ही धन्यवाद का कार्यक्रम खत्म करता हूँ मैं, टाइम की कमी है, हमें नेक्स्ट उसके लिए हॉल खाली करना है। धन्यवाद। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद जिन्होंने इतनी पेशेंटली हमारे स्पीकर्स को सुना और तालियां बजा के हमारे को भी उत्साहित किया कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। निश्चित रूप से हम अगले साल फिर मिलने वाले हैं नेशनल कॉन्क्लेव के लिए, नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2015 में हम फिर मिलने वाले हैं। धन्यवाद। एंड फ्रेंड्स, एक पर्सन जिसके बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था, दैट इज अवर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिस्टर सुनील जैन। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर सुनील जैन। थैंक यू। हेलो, जो लोग जा रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज 1 मिनट के लिए और रुक जाएं, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए। हम लोग राष्ट्रगान करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता जन घन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। प्यार सच्चा है अगर तो गम कैसा जुदाई का यारो, गुल बन के गुलिस्तान वफा में खिलेंगे हम, आज बिछड़ रहे हैं तो गम न करो, अगली कॉन्क्लेव होगी तो फिर से मिलेंगे हम। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।